রিটার্নের সম্পর্কে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রায় 251 জন যুক্ত হয়ে গেছি অলরেডি, এবং হয়তোবা পরে আমরা অনেকে দেখবো ভিডিওটা, জুমটা। তো আসলে দেখেন এই পর্যায়ে এসে যেটা হয়েছে, একটা আতঙ্কের মধ্যে এতদিন, অথবা এখনো অনেকে আতঙ্কের মধ্যে আছি, আসলে কিভাবে আমরা আমাদের মূলধন উঠাবো, কোম্পানির সামনে কি করতে যাচ্ছে, কি হচ্ছে, আমাদের ব্যালেন্স যেটা পেয়েছি সেটা আসলে ক্যাশ করার উপায় কি, কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা হয়তোবা। তো এইটা আসলে কেয়ার যেরকম আমার হওয়া দরকার, আপনার দরকার, এবং প্রত্যেকেরই। এই যে 1 মাস প্লাস গেছে, অথবা 1 মাস হয়ে গেছে যে আমাদের ইনকাম এখানে অফ হয়ে গেছে, প্লাস যে একটা ফ্লো ছিল সেই ফ্লোটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা যেরকম আপনার ইম্প্যাক্ট পড়েছে সেরকম আমার ইম্প্যাক্ট পড়েছে, এবং এখানে প্রত্যেকের ইম্প্যাক্ট পড়েছে। ইকুয়াল টু আপনার যদি ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে বলি, আশা করি যে কেউই আমরা ভালো নেই। হয়তোবা অন্যান্য প্রজেক্টে আমাদের এটাই যেরকম মেইন ফোকাস, মেইন বিজনেস না রেখেই আমরা যেরকম সবাই কাজ করেছি, কিন্তু আবার এটার উপরেই অনেক আমরা নির্ভরশীল হয়ে গেছি। এটা যেরকম আমি, সেরকম আপনি, এরকম সবাই। সুতরাং আহ, এখন এটার আসলে সমাধানটা কি? মানে এখন আমরা কিভাবে আমরা এখান থেকে একটা ম্যাক্সিমাম বেনিফিট নিতে পারি, এইটা সব থেকে সহজ উপায়টা বের করতে 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 গিয়েই এত লেট, এবং আম, এত টাইম নিয়েছি, এবং এখনো নিচ্ছি। কারণ কি? কারণ সেই আরো 10-15 দিন আগে থেকে শুধু একটার পর একটা আপডেট আসছে, আজকে এইটা আপডেট, কালকে সেটা আপডেট, মানে আপডেট আসছে। আপডেট আসার জন্য অপেক্ষা থাকতে থাকতে এই পর্যন্ত। তো এতটুকু বলবো যে আমাদের ভালো কিছু সামনে আমরা দেখব, এবং হতে যাচ্ছে, বা এখনো ভালো কিছু করার সম্ভাবনা আছে। তো আজকে স্পেশালি আমাদের প্রবেশ ভাই, সে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে, অথবা আমাদের এসওয়াই কমিটির জন্য ম্যাক্সিমাম বেনিফিট নেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা কোম্পানির কাছ থেকে। সুতরাং সেইটা সম্পর্কেই ডিস আপনার আলোচনা করব, এবং আমরা কিভাবে এখান থেকে আমাদের ম্যাক্সিমাম বেনিফিটটা নিতে পারি সেটা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো প্রবেশ ভাই, আপনার হ্যাঁ তো হ্যান্ড রাইজ করেন না। তাছাড়া রেজু ভাই আছে। আমরা এই কথা বলবো জু- জুমের শেষে। আগে প্রবেশ ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা একটা কমপ্লিটলি ধারণা নিব, এবং গাইড নিব, যেটা আসলে আমরা এখন কি করলে ম্যাক্সিমাম, এবং কি ক্যাশ তো করার থেকে 2 গুণ, 3 গুণ, 4 গুণ, 5 গুণ, 10 গুণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট নিতে পারি, সেটা নিয়ে একটা ভালো এবং ক্লিয়ার ধারণা ইনশাল্লাহ আমরা পাবো। তো একটু অপেক্ষা করি। প্রবেশ ভাই, লাইন পার তো হ্যান্ড রাইজ কর না। তপু ভাই। হ্যাঁ ভাইয়া, আমি প্রবেশ ভাইকে কি করছি, পাঠাই দিছি সবকিছু। ওকে, আপনি একটু কথা বলেন, প্রবেশ ভাইকে কল দিচ্ছি। জি, আমি দেখতে পাচ্ছি প্রায় 300 জন জয়েন হয়ে গিয়েছেন। আমাদের এই লিঙ্কটার লিমিট হচ্ছে 300 জন। তো আলহামদুলিল্লাহ, ডাওয়ের যে সিস্টেম, খুব অসাধারণ সিস্টেম, এবং অলরেডি বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রম করা শুরু করে দিয়েছে, এবং আমরাও কার্যক্রম করব। তবে আমাদের ফুল সেটআপমেন্টের কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলা আহ, আমরা এখনো ক্লিয়ার না। তো সেগুলা জানার জন্যই কিন্তু মূলত আজকের এই মিটিংটা করা, প্রফেসর স্যারকে নিয়ে, কুলদীপ স্যারকে নিয়ে। তো আমাদেরকে অনেকেই, বিশেষ করে আমাকে অনেকেই ফোন দিচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপে যে ভাইয়া কি অবস্থা, কি অবস্থা। তবে আমি এতটুকু বলবো যে তাদের একটা পজিটিভ মন মানসিকতা আছে, এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম করার প্ল্যান পরিকল্পনা রয়েছে। সেজন্যই কিন্তু তারাও কোঅপারেট করছে, প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। তো এখন আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ আপনি যেরকম এটাতে নতুন, আমিও এরকম নতুন। হ্যাঁ, আপনিও নতুন, আমিও নতুন, তো সেই জন্য আমাকেও জানতে হবে, সাথে সাথে আপনাকেও জানাইতে হবে। তো এই আপডেট গুলা, সিস্টেম গুলা কিভাবে কার্যক্রম হবে, ইউবিটের কিছু প্রবলেম রয়েছে,
এরপরে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা, এবং অ্যাকাউন্টের অনেকগুলো ফাংশন কিন্তু এখনো ফুল ওকে হয় নাই। আপনারা অনেকেই বিট ফাইন্যান্সে কি করেছেন, আপনাদের অ্যাকাউন্টগুলা কানেক্ট করেছেন, তো বিট ফাইন্যান্সে কি দেখলে আমরা কেবল কয়েকটা অপশন দেখতে পাচ্ছি। তো বিট ফাইন্যান্সের অপশনগুলোও কিন্তু বাড়বে। এবং আমাদের যেই ক্রেডিট ওয়ালেটের যে ব্যালেন্স রয়েছে, এরপর হচ্ছে লয়াল ক্রেডিট যেটা রয়েছে, সেগুলোও কিন্তু ট্রান্সফার করার অপশন আসবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েকদিন আগে বিটিএস ট্রান্সফার করার অপশনটা কিন্তু চলে আসছে। এবং আবার এরই মধ্যে যাদের অ্যাকাউন্টে, বিট হারভেস্টের অ্যাকাউন্টে যাদের মনো এআই ওয়ালেট অ্যাড করা ছিল, হ্যাঁ, যাদের মনো এআই ওয়ালেট অ্যাড করা ছিল, তারা কিন্তু আবার অনেকেই কি করেছে, বিট ফাইন্যান্স যেই অ্যাকাউন্টটা রয়েছে সেইখান থেকে উইথড্র দিয়ে মনো এআই ওয়ালেটে সম্পূর্ণ আপনার বিটিএসটা ট্রান্সফার করেছে। তো এই সিস্টেমগুলা, একটা হচ্ছে তৈরি করা একটা সিস্টেম ছিল, সেটাতে কার্যক্রম করা, আর একটা হচ্ছে তৈরি হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। এবং আহ, তৈরি হতে 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 সেটা আবার আপডেট হচ্ছে, সেটা আমাদেরকে আবার ব্যবহারও করতে হচ্ছে। তো এই জন্য হয়তো অনেকগুলা কিছু সময় লাগতেছে, এবং অনেকগুলা কনফিউজ আমাদের ভিতরে কার্যক্রম করতেছে কোনটা কিভাবে কার্যক্রম করবে। তো সেগুলা জেনে সিস্টেমটা ফিক্সড হওয়ার পরে আমরা কিন্তু ডে বাই ডে ভিডিও দেওয়া শুরু করব, যে এইভাবে এই কাজটা করবেন, এইভাবে এইটা হবে, এইভাবে ওইটা হবে। তো সেই জন্য এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ধৈর্য ধারণ করে এই বিষয়গুলো আস্তে 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 আমাদেরকে জেনে আহ ধীরে সুস্থে ভাবে কি করতে হবে, আমাদেরকেও জানতে হবে, এবং আপনাদেরকেও সেটা জানার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তখন গিয়ে দেখা যায় যে সুন্দর একটা সিস্টেম, এবং স্মুথলি আমরা কি করতে পারবো, ব্যবহার করতে পারবো, পুরো সিস্টেমটাকে আপডেট করতে পারবো, এবং এখান থেকে সর্বোচ্চ বেনিফিট আমরা নিতে পারবো। তো তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিনিয়ত আপডেট আসতেছে, সিস্টেমগুলো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, প্ল্যান প্রোগ্রামের সুযোগ সুবিধা আসতেছে। তো এই জন্যই আমাদেরকেও একটু মিটিং গুলা করতে হচ্ছে, ফিক্সড একটা আপডেট নিয়ে, ফিক্সড একটা সিস্টেম নিয়ে। কারণ মিটিং করলে এখন অনেকে বলবেন, অনেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করবেন। তো এখন এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার কাছে থাকতে হবে, আমার কাছে তথ্য থাকলে তারপরে আমি আপনাকে দিতে পারবো। এখন আমার কাছে যদি তথ্য না থাকে, তাহলে আপনি প্রশ্ন করলে আমি তো কোনো আনসার দিতে পারবো না। এটাই স্বাভাবিক। তো তখন মিটিং করা আর না করা দুইটা সেম হয়ে যাবে। জি, এই তো ওই যেটা বললে যে এখন আসলে সিস্টেম প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে, এবং এজন্য আমাদেরও প্রতিনিয়ত আপডেট হওয়া প্রয়োজন। সেইটা আবার আপনাদের মাঝে দেওয়া প্রয়োজন। তো আগে যেটা হয়েছে, আমাদের কাছে সব কিছু আপডেট ছিল, আমরা সব প্রসেস, মানে আগে একটা কমপ্লিট সেট আপের মধ্যে আমরা ছিলাম, যেখানে আমরা সকল কিছু জানতাম এবং কিভাবে কি হবে, কিভাবে কি হচ্ছে নিয়ে বলতে পারতাম। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, প্রতিনিয়তই আপডেট হচ্ছে সব কিছু। সুতরাং আমাদেরও প্রতিনিয়ত আপডেট হওয়া লাগছে, কোথায় কোন ল্যাগিংস সেটা দূর করা লাগতেছে, এবং কিভাবে কি কাজ করব, A to Z। মানে আজকে মনে করেন একটা জিনিস আসলো, কালকে আরেকটা জিনিস আপডেট হলো, এরকম আপডেট হতে হতে হয়তো বা বেশি সময় লাগবে না। একটা 1.5 মাস অথবা 1 মাস, কোম্পানি তো অলরেডি বলছে যে জানুয়ারির প্রথমের মধ্যে আমাদের ডিভাইস চলে আসবে। তো আশা করি জানুয়ারি মাসের মধ্যে আমাদের ডিভাইস চলে আসলে আমরা এখান থেকে তো ম্যাক্সিমাম বেনিফিট হইতে পারবো। এবং তখন এখন যে ল্যাগিংসটা, এখন যে সমস্যাটা বিট হারভেস্টের মধ্যে হয়েছে, এটার ভবিষ্যতে আমরা ইনশাল্লাহ দেখতে পারবো না। কারণ কোম্পানি সেখানে 6টা থেকে 7টা অথবা 5টা কয়েন রাখবে আমাদের জন্য, যেগুলো আমরা মাইনিং করতে পারবো। মনে করেন এখন বিটকয়েনের সমস্যা হয়েছে, আমাদের হাতে যদি অপশন থাকতো যে বিটকয়েন মাইনিং করার সমস্যা হয়েছে, তো আমরা এখন ইথেরিয়াম মাইনিং করলাম। তো বিটকয়েন বাদ দিয়ে সবাই আমরা ইথেরিয়ামে সোয়াইপ করে ফেলতাম একদিনের মধ্যে, আমাদের কারো কোনো সমস্যাই হইতো না। আমাদের একটা মাইনিং হয়েছে না কি হয়েছে, আরেকটাতে মাইনিং হচ্ছে। তো এই সুযোগটা আমাদের প্রথম বিট হারভেস্টের মধ্যে ছিল না, এবং কোম্পানি এটা ভেবেছে এবং কোম্পানি এটা নিয়ে কাজ করছে। এটা কিভাবে আমাদের সামনে আনবে, কিভাবে কাজ করবে, এগুলো নিয়ে কোম্পানি ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর পরিমাণে কাজ হচ্ছে বর্তমানে। সুতরাং তারপরেও এখন যেটা কোম্পানি আমাদের জন্য দিয়েছে ডাও সিস্টেম, এটা অনেক ভালো, এবং ইন্ডিয়া কমিউনিটি তো প্রায় প্রত্যেকে কাজ করা শুরু করছে, কারণ এখান থেকে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট নেওয়া সম্ভব। তাছাড়া অন্য অন্য কমিউনিটির কথা যদি বলি, জাপান কমিউনিটি, কোরিয়া কমিউনিটি, এরা তো মাথা নষ্ট, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের বিজনেস অলরেডি করে ফেলছে এক এক কমিউনিটি।
তো আমরা এখান থেকে যেরকম পিছিয়ে আছি আবার পিছিয়ে নেই, কারণ কি আমরা আসলে ওরকম এখনো ফোকাস দেই নাই। আমরা আসলে এখনো কিভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব সেটা নিয়েও আমরা এখনো ফোকাস দেই নাই, কারণ আমরা চাচ্ছি আমরা একটু কমপ্লিটলি জেনে শুনে তারপর কাজ করি। এখানে হয়তো বা বাংলাদেশ থেকেও করতেও পারে, আমি জানি না, কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত করি নাই। কারণ আমি এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার না হয়ে আমি যেরকম ঢুকবো না, আমি আপনাদের বলবো না যে আপনারা করেন। কিন্তু এখানে প্রত্যেকেরই আপনারা স্বাধীন, নিজ 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 স্বাধীন, আপনি চাইলে করতে পারেন। কিন্তু এতটুকু বলতে পারি যে ডাউট সিস্টেমটার মধ্যে মানে আমাকে প্রবেশ ভাই একটা থিঙ্ক দিছে, সম্পূর্ণ কিছু বলে নাই। সম্পূর্ণ কিছু বলার জন্যই আজকের জুম মিটিং অ্যারেঞ্জ করে ফেলেছি শর্ট টাইমের মধ্যে, যে আমি শুনবো প্লাস আপনারাও শুনবেন। একসাথে আমরা শুনে যদি আমাদের কাছে মনে হয় না দিস ইজ বেস্ট অপরচুনিটি, তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ করব। তো এই জন্য আমি প্রবেশ ভাইকে ফোন দিছি, আর 2-3 মিনিটের মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে। তো আমরা সবাই একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব, একটা ভালো কিছু আমরা এখান থেকে পাবো। তো এতটুকু বলতে পারি যে সাপোজ আপনার যদি $1,000, আচ্ছা একটু আমাকে একটা ফোন দিছে। আমাদের লিমিট ক্যাপাসিটির জন্য প্রবেশ ভাই ঢুকতে পারতেছে না। হ্যাঁ, अभी ज्वाइन कीजिए। हाँ हाँ, जल्दी। হ্যাঁ, চলে আসছে। উম, অনেক কষ্টে আমাদের জুমে অ্যাটেন্ড করতে পারছে, কারণ আমাদের ক্যাপাসিটির জন্য জয়েন করতে পারেনি। হ্যান্ড রাইজ कीजिए প্রবেশ ভাই। हेलो, हैंड राइज कीजिए ना। তো ভাই কোস্ট করে দেন। हाँ प्रवेश भाई, अनम्यूट किया। जी 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 कर दिया। थैंक यू। थैंक यू आप सो मच सर। बोलिए। एक सेकंड, मैं पीडीएफ भी एक बार शेयर कर लूं। एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अभी करिए। अभी मैं आपको पोस्ट कर दिया। एक सेकंड एक सेकंड। पीडीएफ कहाँ गई? सर दिख रहा है पीडीएफ? हाँ अभी दिख रहा है सबको? हाँ, सबको देख पाइए। हाँ, अभी क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। मैं बहुत आराम आराम से बोलूंगा, ठीक है, ताकि मेरे सारे भाइयों को समझ में आ जाए। ठीक है। अभी हमारे और आपके बीच में थोड़ा सा भाषा का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देर हो गया। वो मैं बाहर वेट कर रहा था, दरवाजा बंद कर रखा था मेरा जूम के लिए।
तो अभी टोपू भाई ने मुझको इजाजत दी कि आप अंदर आ जाइए, तो मैं आ गया। तो दोस्तों ये है BSX डाउ। अभी पिछले कुछ समय में कुछ जो घटनाएं हुई हैं वो आप सबके सामने है। ठीक है, जिस भी तरीके से अप एंड डाउन चला, चाहे वो बिटकॉइन को लेके चला, चाहे वो मार्केट को लेके चला, जैसे भी चला, लेकिन वो हमारे और आपके सामने है। लेकिन कुल मिला के तुरंत ही ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि अचानक ये क्यों। ये अचानक नहीं था सर, ये ऑलरेडी प्लान था कि मतलब ये लेके आना है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इन हालातों में लोगों के बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी फायदा ये हुआ कि ये तैयारी के साथ था, तो इसलिए हमारे और आपके बीच में तुरंत आ गया, वरना इसी में ही 1 से 2 महीने और निकल जाते। ठीक है, तो अब दूसरी बात आ जाती है। मैं यहाँ पे 5 मिनट लूंगा आपके फालतू थोड़ा सा, उसके बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन पे आएंगे। ये जो डाउ प्रोग्राम है, ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा सर, आपको जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा कि आप इसमें इन्वॉल्वमेंट कीजिए। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से किसी ने फोर्स नहीं किया हुआ कि आपको ये करना ही करना है। लेकिन मैं हमेशा से जो मैं सोच रहा हूं वही मैं आपके साथ साझा कर ले रहा हूं। ठीक है, आप खुद समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है। मुझे ऐसा लगा कि ये भी जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसको शुरू हुए भी टोटल 4 दिन हुए हैं। अगर मैं ये कहूं कि बहुत ही बुरा वक्त आपका नहीं आया, या मतलब ऊपर वाला चाहता ही नहीं है, तो हो सकता है कि ये सिस्टम भी 1 महीने में, 1.5 महीने में बंद हो जाए। वरना जो भी कोई सिस्टम आता है और जिसमें सब लोग इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करते हैं धीरे धीरे ही सही, उसकी कोई तो लाइफ होती है। तो उस लाइफ में क्या हम अपना बेड डेप्ट्स, जो हमारा अमाउंट, जो हमारा प्रिंसिपल बिट हार्वेस्ट के अंदर में अटक गया है, क्या हम उसको यहां पर कमा सकते हैं या नहीं? ये ऑप्शन आपके अपने ऊपर डिसाइड करना है, आपको खुद सोचना है कि आप उससे यहाँ पे कवर करना चाहते हैं या नहीं। जबरदस्ती कोई नहीं है सर। ठीक है, आपके पास में BTH सबको मिला है। उस BTH की जो वैल्यू है, वो आज की तारीख में कहाँ जाके अटक गई है, ये भी आपको सबको पता है। लेकिन जिस भी प्राइस पे आपको वो BTH मिला है, आप अगर इस डाउ में जब आते हैं 15 दिसंबर तक, तो आप उसी रेट के हिसाब से अपने उस BTH को यहां पर कंज्यूम कर सकते हैं, यानी यहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद से ये आगे बढ़ेगी डेट या नहीं बढ़ेगी मैं नहीं कह सकता, उसके बाद हो सकता है ओरिजिनल प्राइस से ही यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो। तो पहला प्लस पॉइंट तो अपने साथ ये है कि हम अपने उस BTH को यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं 30% रेशियो के साथ में। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर आपके पास में जो भी आप न्यू फंड के साथ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जिनके पास में सच में ताकत नहीं बची है कि वो अपना नया फंड इन्वॉल्व कर सके। बहुत सारे हैं। ठीक है, वो ये सोचेंगे कि यार, कि मतलब नए प्रोग्राम के अंदर में इन्वॉल्वमेंट करनी है, आना है, कैसे काम किया जाए, कैसे क्या लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको उतने ही बड़े अमाउंट के साथ में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी है। जो आपको कंफर्ट लगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या ये प्रोग्राम आपके लिए ठीक है भी। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये प्रोग्राम मेरे लिए ठीक है, तो तब आप इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कीजिए, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिला हुआ है, आप किस तरीके से USDT को ले सकते हैं। तो ये जो 5 मिनट थे, ये मैं यही चाह रहा था कि लोगों को ये क्लियर हो कि आपके पास में जिस तरीके की ये अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, क्या ये आपके लिए है, या आप इसके लिए तैयार है भी या नहीं है। अब बहुत सारे लोग अपने अलग अलग तरीके से विचार देते हैं जो उनकी नजर में बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन सर मैं आपको एक नेगेटिव बात बोलता हूं। अगर और जगह की तरह से अगर ये सिस्टम बंद हो जाए, तब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास में दूसरा क्या ऑप्शन है? वो ये लोग आपके और हमारे बीच में, हमारे सामने है, प्रोग्राम लेके आ चुके हैं, लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। कोरिया वगैरह में जूम चल रही है, वियतनाम में जूम चलनी शुरू हो गई है, मतलब अपनी अपनी मीटिंग्स। ताइवान बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर चुका है। ठीक है, सम ऑफ अनदर कंट्रीज आल्सो भी इन्वॉल्विंग इन दिस। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, अपना डिसीजन खुद लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा इन्वॉल्व कर रहा है तो आप भी करोगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको अगर ये समझ आ रहा है
तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किया। हाँ, ये एक सजेशन मेरा जरूर रहेगा कि जब आप इसमें आए तो सर ऐसा मत करिएगा कि आप अभी आए, ठीक है अब तो ठीक है, लेकिन आज से 4 महीने बाद या 3 महीने बाद या 5 महीने बाद आप प्रोग्राम बना रहे हैं, चलो यार अब तो दुनिया कर रही है अब हम भी घुस जाते हैं। नहीं सर, या तो इसमें आना है या इसको बिल्कुल काटा मार देना है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग जैसे जैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने अपने फंड्स के हिसाब से, वो बहुत जल्दी इसमें कवर कर रहे हैं। अब वो कवर जिस तरीके से होगा वो प्रोग्राम मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आप लोगों के पास में वीडियो पहुंच चुकी होगी। कल जो मिस्टर लोगान लोगन ली आपके सामने आए थे, उन्होंने अपना सारा बताया था। ठीक है कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम फिर भी आ गए हैं। ठीक है, हम इस तरीके से आए हैं और हम इन चीजों को बनाते जा रहे हैं। ये वाला जो प्रोग्राम ये लेके आए, अभी इसको सिर्फ 4 या 5 दिन हुए हैं टोटली। ठीक है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, अपनी समझ को यूज कीजिए। गिले शिकवे करने से अपने आप अगर अपने अपलाइन के साथ कोई गिला शिकवा करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वो बात है कि मतलब चीज किसी और के यहाँ पे था, मतलब खाना कहीं और पका और गाली दे रहे हैं हम वेटर को। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम सब एक परिवार है। मैं आपसे दूर नहीं हूँ। ठीक है। जब भी मेरे मेरे पास में किसी का भी फोन आता है, किसी की भी कॉल आती है या कोई भी मेरे से बात कर रहा होता है, आप पूछ लीजिए अपने अपनी टीम के अंदर में, मैं उससे उसको रिप्लाई जरूर देता हूँ जो मुझे समझ आता है। और मैंने आज तक कभी किसी को मात्र $100 के लिए भी नहीं इंसिस्ट किया है कि आप $100 भी इसमें इन्वॉल्व करो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। मैंने हमेशा से यही कहा है, आपको अगर समझ आ रहा है तो ही आओ, वरना आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम किस तरीके का है। तो दोस्तों, वेलकम टू BSX डाउ। ठीक है। अब ये जो डाउ प्रोग्राम है, ये इसके बारे में हर कोई मतलब छोटा मोटा तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके के प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट के अंदर में। 3 4 5 प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन वो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज, एक जानकारी देता हूं डाउ के बारे में। ये कोई जनरेशन प्लान नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका फंड जो है उस फंड से कुछ जनरेट किया जा रहा है। नहीं, उसके अंदर उससे जो जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिमांड। सिर्फ डिमांड जनरेट की जा रही है। ये पूरा जो है ये पूल है, पूल सिस्टम है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये एक बड़ा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर में कम्युनिटी एंटर हो रही है। जब तक ये कम्युनिटी, या मैं ये कहूंगा जब तक ये फंड एंटर होता रहेगा, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। जिस दिन ये फंड एंटर होना कम कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस दिन ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ये जो इसमें जो इनकम है या इसमें जो POP मिल रहा है वो कैसे जनरेट होके मिल रहा है। सर, कोई जनरेशन नहीं है। टोटल एक चेन बनी हुई है, एक कॉइन चेन होती है डाउ के लिए, जिसको हम डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंटीग्रेट करते हैं। ये पूरा एक एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा बाइनेंस वगैरह के ऊपर में जब कोई कॉइन लिस्ट होता है, तो अचानक ही अगर कोई मीम कॉइन हो तो वो अचानक ही पंप हो जाता है, अचानक ही 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना। लेकिन वो सिर्फ एक कैंडल होती है, और वो भी सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट या हो सकता है कभी कभी तो 30 सेकंड के लिए। लेकिन वो एक ही बार में 10 20 30 40 गुना अप हो जाती है, और फिर अचानक से वही आके गिर जाती है। वो भी तब जब वो बाइनेंस जैसी एक्सचेंज के ऊपर में आया है। उसका रीजन है सर, वो ऑलरेडी एक डिमांड क्रिएट की जाती है, जिस डिमांड को वो लोग इनकैश कर लेते हैं विद इन 30 सेकेंड, 40 सेकेंड के अंदर में। उसके बाद वो पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई अब इसमें आप ट्रेड कर लो। लेकिन वही अच्छे कॉइन्स आते हैं, वो अच्छे कॉइन्स धीरे धीरे अपने आप को पंप डंप करते रहते हैं, और एक टाइम के बाद में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल के अंदर में अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो अब ये वाला जो डाउ सिस्टम है, ये एक कैंडल वाला है या ये 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने वाला है, ये समय बताएगा। लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये एक पूल सिस्टम है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्रिएट की जाती है। ठीक है। अब यहां पर एक डेफी ट्रेंड बताया गया है। अब ये जो डेफी ट्रेंड आपके सामने बताया गया है ना, ये डेफी ट्रेंड मतलब इन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि उस साल में क्या रहा, उसके बाद वाले साल में क्या रहा, किस तरीके से ये आगे बढ़ा। लेकिन मैं इस सब पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वाला पेज
ये मतलब एक तरीके से ना हमारे किसी काम का नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन इन्होंने दिखाई है ना, ये दिखाई है जो प्रोग्राम्स मार्केट में आए और वो चले, मतलब उन्होंने अपने आप में जो भी सरवाइव किया, कम किया, ज्यादा किया, उस हिसाब से। लेकिन हर प्रोग्राम की, हर प्रोजेक्ट की अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है। कभी वो कम चलता है, कभी वो ज्यादा चलता है, कभी उसकी डिमांड कम होती है, कभी उसकी डिमांड 2-4 महीने के बाद बढ़नी शुरू होती है। तो इस पेज पे आप बिल्कुल मत वो अपना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ $150 के बिलियन डॉलर की मार्केट खड़ी हो गई 2025 में अगस्त 10 के बाद। नहीं, प्रोग्राम अच्छा चलेगा, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी अपनी वैल्यूएशन होगी। प्रोग्राम अच्छा नहीं चलेगा, उसकी डिमांड अपने आप घट जाएगी। यहां पर पॉइंट्स बताए गए हैं डेफी इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की इंडस्ट्री है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर में जो भी डाउ चलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होते हैं। लेकिन ये वाला जो डाउ है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है सर, ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। यहां पर उन्होंने बताया हुआ है ओलंपिक्स डाउ के बारे में, ठीक है, कि ओलंपिक्स जो चला उसमें ये प्लस था, उसमें ये फायदा था, फलाना था, ढिकाना था। हमें इसके ऊपर में नहीं जाना सर, क्योंकि कोई, मैं फिर दोबारा से अपनी बात पे आता हूं, कोई भी प्रोग्राम जो चलता है उसकी अपनी एक थ्योरी होती है, अपनी एक लाइफ होती है। हम आते हैं सीधा सीधा, जो इन्होंने हमारे को एग्जाम्पल सेट किए हैं, एक यूनिस्वैप का दिया है, वी का दिया है, ओरिजिन का दिया है, और उसके बाद में बीएसएक्स डाउ बताया हुआ है। मैं बाकी तीन के ऊपर पॉइंट पे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी तीन अपनी अपनी तरीके से चले हैं, चल रहे हैं, या चल चुके हैं। मैं आता हूं सीधा इस वाले पर, इसमें दिया हुआ है सी डेफी, यानी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी दोनों तरीके से ये काम करेगा। अब ये दोनों तरीके से काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ में काम कर रहा है, ठीक है, जहां पर ट्रेडिंग फीस जनरेट होती है, ताकि वो जो खरीदार है उनकी पावर को बढ़ा सके, उसके उसके द्वारा डिमांड को इनकैश कर सके। अब यहां पर एक सवाल ये आता है कि सर, जो एक्सचेंज है, जो बड़ी एक्सचेंज है, या जो भी एक्सचेंज के साथ ये इंटीग्रेट हुआ है, उससे हमको क्या फायदा होगा। उससे हमको ये फायदा होगा सर, कि उस एक्सचेंज के पास जो लिक्विडिटी है, जो ऑलरेडी उनके पास में बैकअप में फंड है, ठीक है, वो फंड एक तरीके से एक पावर जनरेट का काम करेगा, हमारे और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा कि हाँ, ये हमारे इस कॉइन को स्टेबिलिटी दे सकता है, ठीक है, या उसको एक्सचेंज का रिवेन्यू बायबैक लिया जा सकता है। अब यहां पर देखिए नाम भी दिया हुआ है योबिट के बारे में, इस योबिट के बारे में भी मैं भी आपको आराम से बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको, आप ये समझ सको कि ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आप ये समझिए, बीटीएच, बीटीएच के बारे में आप सब जानते हैं, वो इस डाउ सिस्टम के लिए वन ऑफ द मेन कॉइन है। यानी आपके पास में अगर बीटीएच नहीं है, चाहे वो प्रीवियस यूजर हो, चाहे वो बिल्कुल नया, इस प्रोग्राम में आने वाला नया यूजर हो, बीटीएच इसमें होना जरूरी रहेगा। विदाउट बीटीएच आप इस प्रोग्राम में अपनी एंट्री नहीं कर सकते। इसके बाद में दिया हुआ है पीओबी, प्रूफ ऑफ बॉन्ड, ओके। अब ये जो बॉन्ड पीओबी दिया हुआ है, बॉन्ड सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है, इसको आप एक तरीके से इस डाउ प्रोग्राम में अपने लगाई हुई इन्वेस्टमेंट का, इनकम का एक पार्ट मान सकते हैं। और ये कैश कैसे होता है, ये होता है बीएसएक्स के द्वारा। बीएसएक्स जो इस इकोसिस्टम का टोकन है, यानी बिटहार्वेस्ट और योबिट का मिला जुला कॉइन, बीएसएक्स। अब इससे ज्यादा जरूरी जानने वाली बात यह है कि योबिट क्या है सर। टॉप 50 ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, यानी ये 50 के अंदर में आती है, ठीक है, और इंटीग्रेट किया गया है बीएसएक्स डाउ को। साथ ही साथ इनका ट्रेजरी रिजर्व यहां पर जब उन्होंने चेक किया होगा तो तकरीबन ये था, ठीक है। आप ये जो भी कुछ दिया हुआ है, ये सारा का सारा कॉइन मार्केट कैप पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो की जो भी नॉलेज लेनी हो बिल्कुल फ्रेश तरीके से, वो आपको कॉइन मार्केट कैप पर मिल जाती है। वो आपको बता देता है कि कौन सी एक्सचेंज है, कौन से उस पे है, क्या रेवेन्यू है, क्या उसके पास में बैकअप फंड है, सब कुछ वो आपको बता देता है।
ठीक है, तो आप बकायदा वहां पर जाकर इस एक्सचेंज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ देखिए उन्होंने बकायदा बताया हुआ है, गूगल पे डाला होगा उन्होंने, तो गूगल पर डालने के बाद में उनको ये सब दिख गया कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। अब ये जो एक्सचेंज है, यहाँ पर जब आप डालेंगे ना कॉइन मार्केट कैप पे, बिल्कुल ऐसी तरीके से आपको सब कुछ उसका दिख जाएगा। ठीक है, कि उनके पास में कितना एसेट्स उनके पास बैकअप में है। उनके पास में तकरीबन तकरीबन $100 मिलियन प्लस का एसेट्स है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है रोजाना के ट्रेडिंग वॉल्यूम के द्वारा, अप एंड डाउन। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि वो जो $100 मिलियन+ का उनके पास एसेट्स है, वो यूएसडीटी और इथेरियम में है, ना कि किसी टेढ़े मेढ़े किसी कॉइन के अंदर में। ठीक है, और आप यहां पर देख रहे हैं लगभग $70 बिलियन की यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम एक दिन में हो जाती है, जो ये फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हैं। दोस्तों, किसी भी एक्सचेंज के अंदर जो कमाई का जरिया होता है ना, वो होता है ट्रेडिंग फीस। और ट्रेडिंग फीस आती है हमेशा फ्यूचर ट्रेडिंग में, जो बाइनेंस पे भी आती है। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग होगी उतनी ज्यादा उनको फीस जनरेट होगी। तो यहां पर 20 बिलियन से लेके और 70 और कभी कभी तो 100 बिलियन तक भी ये पहुंच जाता है, कभी कभी ये नंबर 1 पे भी पहुंच जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग के वॉल्यूम के मामले में। तो यहां पर मतलब कहने का मतलब यह है, यहां पर एवरी डे जो ट्रेड होती है वो बिलियंस में होती है, और इनके पास में उसी हिसाब से फीस भी जनरेट होती है। आपको एक और जानकारी देता हूं, ये दुनिया का पहला प्रोग्राम है जो किसी एक्सचेंज से लाइव हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी ये चेक कर सकते हैं, और जो नहीं करे हैं वो भी आप यूबिट को पहले अपने डाउनलोड कीजिएगा और आप वहां पर देख लीजिएगा। जब आप देखेंगे तो यूबिट के प्लेटफॉर्म पे ही आपको वहां पर इस दाव के बारे में दिख जाएगा। तो ये बिल्कुल पहला प्रोग्राम है जो बकायदा किसी एक्सचेंज ने लाइव किया है। अब यहां पर इन्होंने देखिए पूरा प्रोसेस बताया है। यूएसडीटी प्लस बीटीएच के साथ में आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में आपको बॉन्ड मिलता है, उसके बाद में उस बॉन्ड के द्वारा आप पीओबी पीओबी को कन्वर्ट करते हैं बीएसएक्स में, बीएसएक्स के साथ आप स्टेक भी कर सकते हैं, और यूबिट में इल कैश भी कर सकते हैं। आइए इसके ऊपर बताता हूं आपको कि किस चीज को कैसे कैसे करना है, आगे कैसे कैसे बढ़ना है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको जानकारी दी गई है कि आप 30% बीटीएच यूज कर सकते हैं और 70% यूएसडीटी यूज कर सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो मान के चलिए, अगर एक $10,000 की कोई आईडी है, तो वहां पर आप $7,000 का यूएसडीटी यूज कर सकते हैं और $3,000 की वर्थ का बीटीएच यूज कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी बांग्लादेश के भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज की ये मीटिंग सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि जो यूएसडीटी में पूरा जो पैकेज लग रहा है, उसमें 30% बीटीएच यूज होगा और 70% यूएसडीटी यूज होगा। ठीक है, अब आपके पास में जो आपने ये लगाया, आपको 1% डेली का पीओबी मिलेगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, वो 1% डेली का, यानी 100 पीओबी आपको डेली जनरेट होगा। अब ये किस तरीके से होगा, आपको डेली 1% मिल रहा है, लेकिन ये कब तक मिल रहा है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। यहां पर आप देखिए, मिनिमम जो पैकेज है वो है $100 का। $100 का जो पैकेज है उसमें आप 3x तक, यानी $300 तक की वर्थ का पीओबी आप ले सकते हैं। अगर आप $5,000 की एंट्री पे आते हैं तो वो 4x हो जाती है, यानी 4 गुना। इसी तरीके से आप $10,000 की एंट्री पे आते हैं तो वो 6 गुना। और अगर आप $100,000 की एंट्री से अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो आप 10 गुना तक ले सकते हैं। अब 1% पर डे अगर आप लेते हैं, यहां देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, अगर किसी ने $10,000 का एक बॉन्ड ले लिया, उसके पास 1% पर डे आया, तो उसकी कैपिंग कितनी है, $60,000 तक। $60,000 का पीओबी उसको मिलेगा, यानी उसको लगेंगे 1% पर डे के हिसाब से 600 दिन। 600 दिन में आपको ये 1% के हिसाब से आता रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें वर्किंग करते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम है वो भी इसी 600% में इंक्लूड हो जाती है। यानी अगर आप चाहें तो उसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो इस प्रोग्राम में दिया हुआ है। यहां पर पहली पहले लाइन में आप देख रहे हैं ये पूरी रैंक दी हुई है, B1 B2 B3 B4 B5 से लेके B10 तक।
इसी तरीके से यहां पर पर्सनल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। पहले पहली बार जो इन्वॉल्व करता है वो मिनिमम $100 से कर सकता है। अगर आपको B1 बनना है, एटलीस्ट B1 बनना है, यानी पहली रैंक पे आना है, तो आपकी खुद का स्टार्टिंग $100 से होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें $70 आपके USDT और 30 का BTH होना चाहिए। डायरेक्ट रेफरल आपके 3 होने चाहिए, और डायरेक्ट सेल होनी चाहिए आपकी टोटल $3000 की। सर, 3 डायरेक्ट रेफरल का मतलब है 3 डिफरेंट आईडी, चाहे वो $100 की ही हो। और डायरेक्ट सेल का मतलब है $3000, यानी एक ही बंदे ने अगर $3000 का ले रखा है और बाकी दोनों आपने $100 की कर दी, तब भी आप एलिजिबल हो। या एक एक के 3 हुए तब भी आप एलिजिबल हो, या दो ने 500 के लिए, एक ने 1000 का लिया, सॉरी 2000 का लिया, तब भी आप एलिजिबल हो। यानी टोटल वॉल्यूम 3000 और डायरेक्ट रेफरल 3। आपकी टीम सेल्स 3000 की हो गई, डायरेक्ट सेल्स और टीम सेल्स दोनों इक्वलेंट है। आपके पास आप बन गए B1। अब आपको डायरेक्ट रेफरल यानी वन टाइम जो आती है वो 5% का POV आ जाएगा, और आपके पास में रिवेन्यू शेयर आएगा डेली का 20%, जो उनको आ रहा होगा उसका 20% आपके पास आएगा। ठीक है, इसी तरीके से B2 B3 B4 ये सब चलता रहेगा, और यहां पर सिर्फ दो ही लेग है। आपके एक लेग में एक इमीडिएट अचीवर होना जरूरी है। यानी अगर आप B6 बने हैं, तो आपके नीचे एक लेग में एक B5 होना जरूरी है, फिर दूसरी में दूसरा B5 होना जरूरी है, चाहे वो कहीं पे भी हो। टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहां पर दी हुई है, डायरेक्ट आपके दिए हुए हैं। डायरेक्ट से मतलब चाहे आप B10 है, अब B10 पे क्या है कि आपकी खुद का ये होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 50 डायरेक्ट होने चाहिए। लेकिन वो 50 जो डायरेक्ट है, वो चाहे 100 से हो तब भी चलेंगे, $100 से भी। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम भी सारे दिए गए हैं, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, ये पूरा डिफरेंशियल है, 20 40 60 80 100 इस तरीके से। मान के चलिए आप B5 बन गए। B5 बनने पे आपको क्या फायदा होता है सर? आपके पास में B5 बनने के बाद में जो भी कोई नया नया लीडर आपने या नया कोई काम करने वाला आपने अपने साथ ज्वाइन कराया, जब तक वो आपकी रैंक के आसपास तक नहीं पहुंच रहा, यानी B1 B2 B3 B4 ऐसे नहीं आता जा रहा, तब तक उसकी पूरी टीम की इनकम का वही इनकम आपको भी आ रही होगी। क्योंकि यहां पर आप देखिए रिवेन्यू शेयर 100% है। यानी अगर आपके नीचे आपके पास कोई नया बंदा आया और उसने $10,000 लगाए, या मैं ये कहता हूँ 10,000 के आपने सिर्फ 10 लोगों को लगाया, टोटल हो गए 100,000, यानी $1,00,000। $1,00,000 पे 1% डेली, यानी 1,000 के हिसाब से महीने का हो गया 30,000। $30,000 उनके पास में आ रहा है, $30,000 ही आपके पास भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी इनकम है इसके अंदर में, और ये जितनी भी इनकम है ये सब आपकी कैपिंग में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। B5 तक यहां पर कोई सेम रैंकिंग पे आपको नहीं मिलता कुछ भी। यानी अगर आप B4 है, B3 है, और कोई भी इमीडिएट आपकी रैंकिंग पे आ गया, तो आपको उससे फिर कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर जैसे ही आप B6 पे पहुंच जाते हैं, आपको सेम रैंक पे 8%, फिर ऐसे 10, फिर 12 14 और 15, ये भी डिफरेंशियल है, ये आपको मिलना शुरू हो जाता है। जितनी बार ये कैपिंग होगी उतनी बार व्यक्ति को अपने आप री इन्वेस्ट करना होगा। जब जब वो री इन्वेस्ट करेगा, सेम प्रोसेस होगा, और उसके ऊपर वाले को सेम तरीके से इनकम जाती रहेगी। यहां तक क्लियर हुआ सर? सब कुछ क्लियर हो गया? आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके डायरेक्ट क्या होने चाहिए, आपकी टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए, आपका टोटल टीम सेल्स कितना होना चाहिए, और आपको क्या इनकम मिलेगी। बस इतना सा ही प्रोग्राम है ये। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देके बताया गया। ठीक है, मैं इन एग्जाम्पल पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक और काम की चीज बताता हूँ। यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया, मान के चलिए किसी यूजर ने $10,000 का बॉन्ड परचेज किया। अब उसकी कैपिंग है $60,000, यानी छह छह गुना। उसके पास में डेली 1% का POV आ रहा है, तो उसके पास में 600 दिन में ये पूरा होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो B1 बन जाता है तो उसको पूरा होने में सिर्फ 535 दिन लगते हैं। अगर वो B2 बन जाता है तो उसको 500 दिन लगते हैं। इसी तरीके से अगर वो B10 बन जाता है तो वो सिर्फ 2 दिन के अंदर में इसको कवर कर लेता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया है ये सारा का सारा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो बताए जाते हैं, तो आप इन एग्जाम्पल्स के साथ चेक कर सकते हैं। इनकम बहुत अच्छी है, अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां अब लेते हैं इनकम को लेने का तरीका।
सर, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनकम लेने के। मान के चलिए आपका विड्रॉल आज की तारीख में आपकी इनकम बनी $1000 की, 1000 पीओबी की। एक पीओबी इक्विलेंट टू $1000, सॉरी $1। ठीक है, तो 1000 पीओबी का आपका बना, यानी $1000। अब आप इसको विड्रॉल इमीडिएट लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपने $500 बाहर से, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, बाहर से $500 का आपने बीएसएक्स परचेज करना है और उसको सिस्टम पे जाके बर्न कर देना है। जैसे ही आप बर्न करेंगे, यानी बाहर से आपने अभी $1000 आपका अंदर रखा है, आपने बाहर से 500 डाले, बीएसएक्स खरीदा एक्सचेंज पे जाके और उसको बर्न कर दिया। जैसे ही बर्न करेंगे, तुरंत अगले 20 सेकंड में ये 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी लगेगा, ये 1000 यूएसडीटी आपके अकाउंट, आपके वॉलेट में आ जाएगा। यानी अगर आप इमीडिएट इन कैश करना चाहते हैं तो आपको उसके वैल्यू का 50% बर्न करना होगा जब जब आपको विड्रॉल करना है, चाहे वो कोई भी विड्रॉल हो, चाहे वो आपकी इनकम का हो, चाहे कैसा भी हो। अब यहां पर एक और ऑप्शन है। आप ये कहते हो भाई मैं ये 50% नहीं देना चाहता, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उसके उसको भी बचाने का तरीका है। यानी इस वाले ऑप्शन से आप 50% तो बचाओगे ही बचाओगे, प्लस में आप ½ % पर डे का और कमाओगे। वो कैसे है? आपने, आपका जो भी पीओबी बना, मान के चलिए आपका बना $10,000 का। आपका जो $10,000 का पीओबी बना, आपने वो पीओबी स्टेकिंग पे लगा दिया। जैसे ही आपने उसको स्टेक पे लगा दिया 30 दिन के लिए, यहां देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन, 540 दिन। हर एक के आगे लिखा हुआ है कितना परसेंट उसको पर डे मिलेगा रिटर्न। आपने उसको 30 दिन के स्टेक पे लगा दिया, आपको ½ % पर डे का रिटर्न मिल रहा है। अब $100 का आपने स्टेक लगाया, आज आपको आज $100 का पीओबी आया, यानी रिटर्न आया, आपने उसको स्टेक पे आज लगा दिया। आपका कल से ½ % के हिसाब से एक महीने में बनता है सर लगभग लगभग 15%। यानी $100 का 15% होता है $15, यानी टोटल हो गए $115। इस $115 को आप डिवाइड कर दीजिए 30 डेज से, क्योंकि 30 दिन के लिए आपने लगाया हुआ है। यहां ऐसा नहीं है कि आपके पास में ये जो है ये 30 दिन के बाद आएगा, नहीं। टोटल रिटर्न प्लस आपकी कैपिटल डिवाइड बाय 30 डेज, 30 दिन से डिवाइड कर दीजिए। हर रोज आपका ये प्रिंसिपल और रिटर्न आपके पास में आता रहेगा और 30 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। आज भी आपने लगा दिया, कल भी आपने लगा दिया, परसों भी आपने लगा दिया, आपके पास जो आ रहा है आप उसको स्टेक पे लगाते चलिए। 15वें दिन पे आप लगभग 50 से 60 डॉलर पर डे का निकाल रहे होंगे, और एक महीने के अंदर में ये $100+ का हो जाता है। यानी एक महीने में आपके पास में जो रिटर्न आनी शुरू हो जाती है वो लगभग 30 से 35% की आनी शुरू हो चुकी होती है पीओबी बीएसएक्स के रूप में। अब ये जो रिटर्न आएगी ये आएगी आपको बीएसएक्स कॉइन के रूप में, आपके पास आज आई, आपने तुरंत एक्सचेंज पे इसको सेल किया, यूएसडीटी आया, यूएसडीटी आपको जो करना है फिर वो कीजिए। अगर आप बीएसएक्स को सेल नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हो भाई कल इसका रेट बढ़ेगा, मैं तो नहीं आज कर रहा, वो भी आप पे ऑप्शन है, आप रोक के चलिए। वो बढ़े या घटे फिर वो आपका प्रॉफिट और लॉस है। लेकिन आपको रोजाना जो बीएसएक्स आएगा वो उसी दिन के रेट के हिसाब से आएगा। आप इमीडिएट उसको सेल कीजिए, जो मर्जी करना है वो कीजिए। आपने किया और आपका यूएसडीटी बन गया, फिर आपको जो करना, जैसे आप जाहिर सी बात है एक्सचेंज पे करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको दिया गया है, इसमें आपका 50% तो बचता ही बचता है, साथ में आप 15% एक्स्ट्रा गेन करते हैं। तो 15 दिन के बाद में आपका मीटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से चालू हो चुका होता है। यहां पर बताया गया है, देखिए अगर किसी ने 10,000 पीओबी को 30 दिन के लिए स्टेक किया तो उसको लगभग 11,500 मिल गए। इसी तरीके से अगर वो 540 दिन के लिए कर लेता है तो उसके पास लगभग 74,795 भी बन जाते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए बताया गया है, देखिए 10,000 पीओबी डिवाइड बाय 30 डेज, ओके, इंटू 0.05%, ओके, इंटू 30 डेज, इट्स 333.33 प्लस 50 इंटू 30 डेज। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। अब यहां पर एक और फायदा, आपके पास रोजाना ये जो आपका जो अमाउंट बन रहा है, जो आपकी इनकम बन रही है, कई बार ऐसा होता है कि आप ये कहते हो भाई मैं इसको अभी 4 दिन नहीं विड्रॉल कर सकता। सर आप 4 दिन के लिए उसको यहीं पर रख के छोड़ दीजिए,
स्टेक कर दीजिए। इस पर भी आपको रोजाना रिटर्न मिलेगा एफटीटी कॉइन के रूप में। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके प्रिंसिपल का कोई वो रोल नहीं है, मतलब कोई कम या ज्यादा नहीं होगा आपका प्रिंसिपल इसमें। ठीक है, आपको यहां पर रोजाना का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जितने दिन आप इसको यहां पर रोक के चलेंगे। आपने इसको 2 दिन के लिए रखा तो आपको 2 दिन का मिल जाएगा। आपने इसको 10 दिन के लिए रखा तो आपको 10 दिन का मिल जाएगा। आपके पास में कोई लॉकिंग नहीं है यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि आपने अगर आज रखा है तो आप कल नहीं निकाल सकते। आप इमीडिएट बटन दबाओ, आपका पूरा प्रिंसिपल एज इट इज बाहर आ जाएगा विद एफटीटी टोकन। अब ये जो एफटीटी टोकन है, इसका क्या फायदा है? एफटीटी टोकन से आप यहां पर एक तरीके से ये प्रोग्राम आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। उस ट्रेडिंग से अगर फायदा होगा तो आपको यूएसडीटी मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो आपका वही एफटीटी टोकन जाएगा। इस पे आउट से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होगी। ये पे आउट आपका है, आप ही के पास रहेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर प्रोग्राम में क्या समझा? सबसे पहला, आपने सिंपल तरीके से बीटीएच और यूएसडीटी के साथ में अपनी इन्वॉल्वमेंट करी। आपको बदले में क्या मिला? आपको बदले में मिला पीओबी। पीओबी को ले लेके क्या तरीके? 2 तरीके। 50% डालो, इमीडिएट अप्लाई कैश कर लो, बाहर हो जाओ। 50% नहीं खर्च करना है, उसको स्टेक पे लगा दो, बीएसएक्स कॉइन मिल जाएगा, बीएसएक्स को इल कैश करो, बाहर हो जाओ। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी तरीके का अप एंड डाउन नहीं। यहां पर योबिट एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। बीएसएक्स बायबैक का उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि उनके पास ये रैंकिंग क्या है, उनका रिजर्व फंड क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, आप इस चीज को पूरा देख सकते हैं। ये पूरा मैंने इकोसिस्टम आपको तरीके से बता दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। ठीक है, सारी बातें हो जाती है, प्रोजेक्ट दिखा दिए जाते हैं, प्लान शो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कोई आपको कभी मोटिवेट कर दे, ये भी हो सकता है कोई आपको किस तरीके से, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको कहूंगा, हमेशा काम वही करो जो आपको समझ आता हो। आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम आपके लिए है, स्टार्टिंग है, अभी लोग इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए तो आप कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई, मेरे बस की नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिनको वो समझ में आ जाए कि ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनी है। ये बीएसएक्स का जो प्रोग्राम है, ये योबिट के साथ में है। योबिट इसके साथ में क्यों जुड़ा है? जाहिर सी बात है, वो भी ये चाहता होगा कि उसके पास एक इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व करे, इसलिए जुड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम कभी जिंदगी में जाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम सारी जिंदगी के लिए बना है। लेकिन अगर ये शुरुआत में है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि शायद अच्छा चल जाएगा, बहुत अच्छा चल जाएगा। ठीक है, अपने को टाइम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी डिसीजन आपका है, क्योंकि आप ही इसका सही और गलत का फैसला अपने ऊपर ले सकते हो। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए। मैंने बहुत आराम आराम से धीरे धीरे इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दी है। फिर भी अगर कुछ ऐसा रह जाए तो आप अपने अपलाइन से इस बारे में बात कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कुछ रह जाएगा तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রবেশ স্যারকে, খুব সুন্দর করে প্রাঞ্জল ভাষায় পুরো प्लान प्रेजेंटेशनটা बुझिए दिएছেন। तो सर जी, किसी लोगों का शायद कुछ क्वेश्चन है, तो आप क्या आप थोड़ा सा समय देंगे कुछ क्वेश्चन के लिए? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन आप उठा लीजिए, क्योंकि अभी आप बांग्लादेश से भाई लोग हैं सारे। अभी उनकी जूम थी, अभी एक और जूम भी होनी है। ठीक है, उसका भी टाइम हो गया है, मेरे पास 5 मिनट है पूरे। आप बिल्कुल कर सकते हैं, उठा হ্যাঁ लीजिए। তো ভাই, তার আগে আরেকটু আমরা ক্লিয়ার হই। প্রবেশজি। हाँ सर, हेलो। बोलिए बोलिए प्लीज। जी जी। अच्छा, कोई कोई एग्जाम्पल दे सकते? सपोज कोई बंदा अभी $1,000 का डाउ में वो बीटीएच कन्वर्ट, $1,000 का कोई पैकेज डाउ में लेगा, तो उसको जी कितना सारा बेनिफिट होगा? सर, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक हाँ, एक हजार हजार डॉलर के डॉलर और दस पैकेज हजार डॉलर मैक्सिमम मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिल सकते हैं और कितना दिन का अंदर? ये हम आ जाते हैं वापिस। हाँ, बीटीएस यूज करके कितना मैक्सिमम बीटीएस यूज कर सकते हो? अभी हर बंदा के पास बीटीएस भरपूर। ये देखिए, ये वाला पेज देखिए, हाँ। ये $10,000 का बॉन्ड है। ठीक है,
$10,000 में उन्होंने बताया हुआ है 6 गुना की कैपिंग है। अभी हम काम के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली बात करेंगे। ठीक है। ऐसा बात दस हजार कीजिए, डॉलर मैक्सिमम हर बंदा बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, $10,000 पे 1% यानी कि $100 का उसको रोज का पीओबी आएगा, रोज का। मेरी राय में आप उसको इंस्टेंट विड्रॉल मत कीजिए, आप उसको स्टेक पे लगा दीजिए। अगले ही दिन आपके पास 800 आया, आपने उठाया उसको और 30 दिन से ज्यादा के स्टेक पे मत लगाइए। ठीक है, सिर्फ 30 दिन वाला ही लगाइए। आपने अगले दिन ही लगा दिया, दूसरे दिन फिर 100 आया, फिर आपने लगा दिया, तीसरे दिन फिर 100 आया, फिर आपने लगा दिया। अब आप समझिए, पहले दिन आप मतलब जब आप स्टेक पे लगाएंगे उसके 24 घंटे के बाद में आपके पास आता है लगभग $3.8, पहले दिन वाले स्टेक का। दूसरे दिन आपके पास क्या आएगा, 3.8 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, यानी लगभग $7.5। तीसरे दिन क्या हो जाएगा, वो $11 हो जाएगा उसमें। हर रोज अब आप 3.8 प्लस करते चले जाओ। 15वें दिन क्या होगा, वो लगभग $50 से $60 आपको रोजाना का आ रहा होगा। और एक महीने के अंदर में आपके पास में वो $100 प्लस का रोज का आ रहा होगा। अब वही सर्कल चलता रहेगा, क्योंकि आप 30 दिन से ज्यादा का स्टेक नहीं लगा रहे। रोज आप पे जो ये आ रहा है इसको स्टेक लगाते जाओ और वो अपना निकालते जाओ। तो सर लगभग लगभग आपके पास में 3 महीने के अंदर में ये पूरा का पूरा 10,000 आपके पास आ चुका होता है। वैसे 3 से कब में आता है, 2 महीने और तकरीबन 20 दिन के अंदर में ये आ चुका होता है। लेकिन मैं फिर भी 3 महीने कह रहा हूँ, 3 महीने में आपके पास ये आ चुका होता है। और जो भी ओके। आपके पास रोजाना स्टेक से जो आपके पास बीएसएक्स आ रहा है, हाँ। आप उसको इमीडिएट कैश करो सर, इमीडिएट। आप ये मत सोच के चलो अभी कि यार इसका तो प्राइस बढ़ेगा आगे जाके तब कर लेंगे, नहीं, पहले सबसे पहले अपना प्रिंसिपल रिकवर करो। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सर $10,000 का आपने स्टेक लगाया, उसमें आपका एक्चुअल फंड लग रहा है $7,000, $3,000 का बीटीएच लग रहा है। और बीटीएच अभी इस प्रोग्राम के अंदर जिस रेट पे आपको मिला था उसी रेट के हिसाब से लग रहा है 15 तारीख तक। 15 के बाद में फिर मार्केट प्राइस जो चल रहा है वही होगा, लेकिन 15 तक जिस रेट पे आपको दिया था उसी रेट पे ही आप उस बीटीएच को लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में आपका लगा 7,000 अभी नए वाला, ठीक है, लेकिन आपका पिछला वाला भी 30% इन कैश हो गया। और 15 तारीख तक ही अपने पास में एक ऑफर चल रही है, आपको पता ही है, 20% वाली। यानी जो भी व्यक्ति इसमें जो भी आईडी इन्वॉल्व कर रहा है बीटीएच के साथ, वो अपने डाउ वाला ट्रांजेक्शन आईडी और साथ में अपना जो बीटीएच वाली ट्रांजेक्शन आईडी है, दोनों की दोनों बैकएंड पर भेज दे, एडम को भेज दे। ठीक है, 7 दिन के अंदर उसका 20%, यानी सपोज कीजिए आपने $10,000 की आईडी लगाई एग्जाम्पल, अब इसमें आपने 7,000 यूएसडीटी लगाए हैं और $3,000 के बीटीएच लगाए हैं। साथ ही साथ अब आपके पास $2,000 का बीटीएच और रखा हुआ है जो अभी आपने यूज नहीं किया। वो $2,000 का बीटीएच यानी 20% आपको कंपनी को वापस भेजना है। और बदले में 7 दिन के अंदर वो उसके बदले में $2,000 आपके योबिट वाले अकाउंट पर आ जाएंगे। यानी वो विड्रॉ आपका कर सकते हैं ना? 50 यानी आपका 50% बीटीएच इन कैश हो गया। ठीक है, आपकी जो आईडी जो लगी वो एक्चुअल में $5,000 की लगी बस। जो आएगा 2,000 वो विड्रॉ कर सकते हैं ना? अरे वो तो आपके एक्सचेंज पे आएगा ना सर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है किसी और उसका, वो तो सीधा आपके वॉलेट पे आ गया ना। हाँ, वो तो तो आपका हो सीधा गया। सीधा अभी कोई बंदा डाओ में, पुराना जो बंदा हम लोग है, बीट हार्वेस्ट का बहुत सारी अमाउंट बीटीएच पड़ा हुआ, तो वो चाहेगा 50% यूज कर सकते हैं 15 तारीख तक। जी जी, और 15 तारीख पुराना तक। पुराना तो रेट में जो रेट मिला। हाँ, जी जी जी, उसी पे कर सकते हैं। तो 50% आपका ये हो गया, 50 आपकी आईडी एक तरीके से 50% पे लगी। और 1% डेली के हिसाब से, यानी उस 50% का लगभग 60-70% हिस्सा तो आपके पास में एक ही महीने में बाहर आ गया। तो दोस्तों मैं फिर बोलूंगा, जो लोग इसको कैलकुलेट करके ले सकते हैं वो कीजिए। अगर उनको लगता है जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ही समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो डिसीजन आप लीजिए, सिंपल। तो वो भाई बुझছেন? रोबिर जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जो मार्केटिंग जो इनकम आएगा इसमें, वो डायरेक्ट जी यूएसडी आएगा और पीओबी में आएगा? नहीं, जितना भी इनकम आपके पास आएगा, जितना भी, वो सब आपके पास पीओबी में आएगा।
मतलब पीओबी जो मैंने कैश करना है वही दो तरीके में कैश करना होगा, बस एक बस स्टेट बस, करके सिंपल सिंपल। BSX में। कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप पे जितनी इनकम आ रही है सब पीओबी में आ रही है। पीओबी को कैश करने के दो तरीके। पहला 50% उसका आप बीएसएक्स खरीदो, बल्क करो, इमीडिएट ले लो। दूसरा स्टेकिंग में लगाओ और डेली डेली कैश कर लो। मतलब सिंपल। पीओबी इस प्लेटफॉर्म में एक स्टेबल कॉइन की तरह काम करेगा। जी जी जी। बीएसएक्स जो है ना वो एक स्टेबल कॉइन की तरह काम करेगा। बीएसएक्स अपना एक सर्टेन लेवल पे अप, सर्टेन लेवल पे डाउन, बस यही चलता रहेगा। तुरंत तुरंत एक्सचेंज पे जाओ, इमीडिएट इल कैश करो, यूएसडीटी आपका आ चुका, फिर उसका तो जो करना है वो करो। जी समझ गए। जी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया टोपू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त थोड़े से परेशान हैं मुझे मालूम है, लेकिन दोस्तों समय है, अप एंड डाउन चलता है, सब चीजें हो जाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और पहले ही दिल से आ चुकी है आपके और हमारे बीच में। लेना ना लेना वो आपकी कॉल है सर, मैं फिर बोलूंगा। इसमें ना टोपू भाई आपको फोर्स कर रहे हैं, ना प्रिंस भाई फोर्स कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। बस ये है, सर जी, इसको आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। मेरा एक आपको कैसे चल रहा है? जी। मेरा क्वेश्चन था। वो जो बांग्लादेश के लिए हम तो यूबिट वेरीफाई कर नहीं सकते, लेकिन VPN कनेक्ट करके और जो 2FA को ऐड जैसा आपको करके। बताया था वैसे ही सबको बता दो ना, आपको बता दो ना, आपने कर तो लिया है, आप वही चीज सबकी करवा दो। हाँ, तो ये कुछ अपडेट हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो बहुत क्या कहूँ मैं इसको, वो बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर देखो मैं आपको एक चीज बताता प्रॉपरली हूँ, काम नहीं कर सकते। उस दिन भी एक ने सवाल किया था, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन कोई एक्सचेंज नहीं बनाती अपने आप, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम होती है, तभी ये करना पड़ता है। आज हर एक्सचेंज ये चाहेगी वो तो पूरी दुनिया में हर देश में ही चालू हो जाए, लेकिन कोई गवर्नमेंट होती है जो सपोर्ट नहीं दे रही होती है, जो मना कर देती है भैया नहीं आओगे, नहीं आ पाएंगे, क्या करेंगे? तो उसका इलाज यही है सर। अब आपके यहाँ पे आप बाइलेंस पे बड़े आराम से P2P कर लेते हो, हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत है। हाँ, ये मैंने सुना है। फिर आप सोचो इंडिया में दिक्कत है, नहीं कर सकते बाइलेंस पे जबकि आपके वहां पे बड़े आराम से होता है। तो सर वो अलग अलग देशों के रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ में हम कुछ नहीं कर सकते, अब और आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और सर एक আমরা बात তা ये है, जिन लीडरों ने, तो मान लीजिए हमने BSX पे यानी डाओ प्रोजेक्ट में हम काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो टीम है वो ट्री कैसे सेटलमेंट होगे? ये जब अपने बिट फाइनेंस का अकाउंट के साथ जो जब उनका वॉलेट कनेक्ट करता है तब भी वो ट्री में आ जाता है क्या, या फिर नए हाँ तरीके जी से हाँ जी। उनको रेफर आपको करना सिर्फ पड़ेगा? सिर्फ उसी ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपकी वहां पर थी, उसी ईमेल आईडी से योबिट में अपना अकाउंट बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना। अपने आप वो ट्री आ जाएगा, তবু ভাই उसके এটা साथ চলে बाइंड আসবে कीजिए, আমাদের দেখা যায়। बस। আমাদের যাদের যে বিটারবেস্ট অ্যাকাউন্ট আছে, যে জিমেল অ্যাকাউন্ট ইউজ করে আমরা বিটারবেস্ট অ্যাকাউন্ট করেছি, সেম জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে যখন আমরা ইউবিটি অ্যাকাউন্ট খুলবো, আমাদের বিটারবেস্টে যেরকম যেভাবে ট্রি সাজানো ছিল, যার নিচে যে ছিলেন, অটোমেটিকলি তার নিচে সে চলে যাবেন। এখানে কোনো রেফারেল কোড ইউজ করা লাগবে না, কোনো কিছু করা লাগবে না। আচ্ছা প্রিন্স ভাই, একটা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন ওনার কাছে। অনেকে আছে মানে কারোর সাথে কোনো পরামর্শ না করে অন্য জিমেল দিয়ে, অনেকে একাধিক জিমেল দিয়ে আপনার বিটার বেস্ট অ্যাকাউন্ট করছে, একাধিক অ্যাকাউন্ট। তো অন্য জিমেল দিয়ে যদি সে ইয়াতে ইউবিডে অলরেডি অ্যাড্রেস নিয়ে বিট ফাইন্যান্সে আপনার অ্যাকাউন্ট সেট আপ করে ফেলে, পরে যদি সেটাতে বন্ড নিয়ে নেয়, তো সেই ক্ষেত্রে ওইটা কি হবে তার? তখন অন্য জিমেল দিয়ে করলে তখন রেফারেল কোড ইউজ করা লাগবে। কিন্তু সেম জিমেল দিয়ে করলে রেফারেল কোড আর ইউজ করা লাগবে না। অন্য জিমেল দিয়ে করলে তখন রেফারেল কোড দিবেন, আপনার টিমে থাকলে আপনারটা, অন্য টিমে থাকলে অন্যটা। ওকে। তো এখন বেশি ওইরকম হয়তো বা 2-4 জন করছে, কিন্তু বেশিরভাগই আমরা কিছু করিনি। তো আমরা যে হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা আমরা অনেকে কেউ জিমেল করিনি। অথবা অনেকে করে ফেলছে নিউবিট, কোনো সমস্যা নাই, বন্ড কিনেন নাই, কোনো সমস্যা নাই। আপনি আপনার যেটা বিটার বেস্ট অ্যাকাউন্টের জিমেল আছে, সেম জিমেল দিয়ে ইউবিটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন, তাহলে অটোমেটিকলি ট্রি যেখানে যে যার নিচে আর ছিলেন এরকম ভাবেই। আর আরেকটা কথা প্রিন্স ভাই, এটা প্রবেশ ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করেন। বিটিএস নিয়ে মানে ধোঁয়াশা, মার্কেট সাপ্লাই বা আমরা কিছু জানতে পারছি না, এটা নিয়ে আমাদের বিষয়ে अच्छा বেশি उमेश भाई, তো এটা बीटीएच का একটু तो अभी জিজ্ঞেস করেন। बीटीएच का तो अभी मैक्सिमम सप्लाई और बार्निंग कैसे हो रहा है, ये वो पब्लिक नहीं हुआ ना।
नहीं आपके क्यों एड्रेस आ तो गया सर, वो एड्रेस आप लाइव देखो ना, उसका जो बर्न वाला जो एड्रेस है वो आ चुका है, उसको सर सर पब्लिकली इसी पे मेरा मेरा एक क्वेश्चन एप्लीकेशन है पे ही आ सर। जाएगा। जो जी जो जी। पहले हमको बोला 2.1 ट्रिलियन, हम वही सोच के चल रहे थे। अभी जब हम लोग एक्सचेंजर में देख रहे हैं तो अपना ट्रांजेक्शन या दो ट्रांजेक्शन ट्रिलियन में हो रहा है, बाई सेल हो रहा है। तो वो है कैसे? हम लोग अभी बीटीएच का एग्जैक्टली कितना सप्लाई है मैक्स, वो जानना चाहते हैं, बस यही क्वेश्चन है। सर मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, ये बात बहुत बहुत बार उठ चुकी है, अलग अलग बंदे अलग अलग तरीके से, आज मैं सब भाइयों के बीच में बोलता हूँ। शुरू शुरू में इनका बीटीएच को जो प्रोग्राम लॉन्च करने का था वो बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक है, उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम के लिए बीटीएच जिसको भी मिला है एज ए बोनस मिला है, और वो सबको मिला है। उसमें ये नहीं हुआ है कि जिसका पूरा हो गया उसको नहीं मिला या जिसका कम था उसको नहीं मिला, सबको मिला। वो उसके उसके दो रीजन थे, उसके लिए उन्हें सप्लाई बढ़ानी पड़ी, ठीक है। और दो रीजन थे, पहला, जब आपके पास बीटीएच होगा, आज लाखों लोगों के पास होगा, जब आपके पास होगा तभी आप उसको यूज करोगे, चाहे आप उसको वेट एंड वॉच करके एक्सचेंज पे डालो, चाहे आप उसको अपने अकाउंट से निकालो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। कोई कमेंट बेच दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, जो भी कर दे रहा है, लेकिन कुल मिला के उनके पास वो अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, अब जब सबके पास ये आ चुका तो उसके बाद में ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन ये दिया गया कि आप इस बीटीएच को डाउ में यूज कर सकते हो, और जितना भी बीटीएच जा रहा है वो बकायदा बर्न हो रहा है। तो जो भी कोई कॉइन आपको सबको फ्री में मिलेगा और सारे लोग उसको बेचेंगे सर, उसका प्राइस कभी नहीं बढ़ सकता। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। लोग कह रहे हैं सर उसका बहुत गिर गया, बहुत, अरे सर क्यों नहीं गिरेगा? जब आप बेचना चाह रहे हो, मैं बेचना चाह रहा हूं, हर कोई बेच रहा है, तो प्राइस तो गिरेगा ही। आज सारी दुनिया अगर बिटकॉइन बेचने लग जाए, बिटकॉइन धरती पे गिर जाएगा। तो ये हाँ मतलब सर, ये वही ठीक जो, है, लेकिन सर 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 ले प्लीज प्लीज जी जी एक बार जी। मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। अब ओके। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इसकी खपत होनी चाहिए और इसकी सप्लाई खत्म होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि भाई आप इसको लगाओ इसमें, और ये जितना लगता जाएगा उतना ये बर्न होता चला जाएगा। 15 तारीख के बाद से उनकी पूरी कोशिश है कि अगर मैक्सिमम यूज होने लग जाए तो इसके प्राइस को फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा चांसेस मैं आपको साफ साफ बताऊं, कम से कम अभी 1 से 2 महीने लगेंगे इसके प्राइस को फ्लक्चुएट होने में। उसके बाद में आपको ये दिखेगा कि हाँ, क्योंकि ये जो डाउ प्रोग्राम है ना, आप समझिए, डाउ प्रोग्राम के अंदर में लोगों का, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, अब आपको बार बार अपनी आईडी को रीटॉप अप करना है। जब जब आपको अपनी आईडी को कैपिंग को रीटॉप अप करना है, जब जब नया यूजर को आना है, जब जब कोई नई आईडी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तब तब बीटीएच की जरूरत पड़ रही है। अब वो बीटीएच लेने के दो ही तरीके हैं, या तो हमारे आप से ले या एक्सचेंज से ले। दोनों ही सूरतों में जितना भी इसके अंदर जा रहा है वो सारा बर्न हो रहा है। तो अभी उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका प्राइस थोड़ा उठना शुरू हो जाएगा। इसकी सपोर्ट के लिए, ताकि लोग परेशान ना हो, उन्होंने दोनों ने मिलके, मतलब बीएस बिट हार्वेस्ट और योबिट ने मिलके बीएसएक्स कॉइन लॉन्च किया। और उस कॉइन का भी निकालने का रीजन यही है कि वो पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई से कैलकुलेट किया गया है। यानी कि जब उसका प्राइस डाउन जाने लगेगा तो लोग क्या करेंगे, इमीडिएट में 50% देके अपना प्रॉफिट निकालने लग जाएंगे। तो उसका प्राइस जब वो प्रॉफिट बर्न होएगा तो वो फिर प्रॉफिट उठेगा। और इसी तरीके से जब वो स्टेक पे रखेंगे तब भी आपके पास में डेली आता रहेगा। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको, अब अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि बीटीएच का प्राइस यार, मतलब 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर में ही बस सीधा $1 पहुंच जाए, $0.5 पहुंच जाए, 10 सेंट पहुंच जाए, सर वो नहीं होगा, मैं आज आपको बता दे रहा नहीं हूँ, नहीं वो नहीं होगा। भाई, भाई, वो बोल रहा है ये जी। प्राइस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत वो सप्लाई मैक्सिमम कितना देगा? नहीं, अनलिमिटेड सप्लाई बीटीएच होगा। बीटीएच स्कैन पर जाकर आप चेक कीजिए, ठीक है। अभी मुश्किल से मुश्किल शायद 3 या 4 या 5 दिन के अंदर में बकायदा एक वॉलेट आ जाएगा जो बिल्कुल लॉक्ड वॉलेट होगा। वहां पे आप बकायदा ये देख पाओगे इसकी टोटल सप्लाई अब कितनी रह गई और ये रोजाना कितना बर्न होता चला जा रहा है। राइट राइट राइट, मैं यही आपको पूछ रहा हूँ, जो अभी तक तो हाँ पब्लिक नहीं किया, बाद में हाँ। 1 हफ्ते के अंदर ये पब्लिक अभी हो आपके जाएगा। सामने आपको पूरा दिख जाएगा भैया, ये इसकी टोटल ये रही सप्लाई, और आपको बकायदा दिखता रहेगा ये इतना गिरा, इसमें ये बर्न हो गया, बाकी ये दिख रहा, ये लग रहा, ये दिख रहा, तो वो सब दिखने लग जाएगा। सर हाँ हाँ एक और हाँ। जी
अभी जो हम यूबिट एक्सचेंजर में देख रहे हैं, जो बीटीएच बाई हो रहा है ट्रिलियन के आकार से, ठीक है, तो ये जी। बाई क्या कंपनी सप्लाई से बाई कर रहा है, सेल कर रहा है यूबिट में जो ये खरीदता है? नहीं 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 नहीं, अभी आप समझिए, इसमें कंपनी का कोई कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसमें आप आप हो, आपके पास माल आया, आपने कहा भाई, बहुत, आप ये समझिए बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो नेटवर्किंग में इन्वॉल्व भी नहीं होते। ठीक है, उनको ओके। उनको कोई न्यूज पता नहीं होती है। वो बाय मतलब थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब, कहीं से भी मतलब ऐसे करके कोई लिंक पकड़ के ज्वाइन हो जाते हैं। अब उनको कोई अपडेट नहीं है कि उनके पास कहाँ से बीटीएस, उनको क्या दिखता है, अरे यार ये बीटीएस मिल गया, इसको बस हमने सेल करना है। अब वो सर वो बेचारा सेल पे लगा देता है। वो कहता है यार ये $100, ये $300 का, ये $1000 का था, ये इसके $30 रह गए, या मेरे को यही मिल जाए। तो वहां ऐसे भर के लग गए हैं। जी सर, वो सही है। हम लोगों को बीटीएच का प्राइस का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं एक कॉइन मार्केट में आता है, उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। हमारा दो ही इशू है। एक है हम लोग इसका जो मैक्स सप्लाई है वो नहीं पता कर रहे हैं, और दूसरा वो चीज़ है, हम जब एक्सचेंजर में जब भी प्राइस है अभी तक, हम जब सेल करते जाते हैं हम सेल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक्सचेंजर में देख रहे हैं ट्रिलियन के आकार में कॉइन सेल हो रहा है। ये दो ही चीज है, सर वो जो ये अगर सर वो जो थोड़ा सा और। सर वो जो बिलियंस वगैरह कॉइन सेल हो रहे हैं, आप देखो ना, वो कितने मिनिमम रेट पे हो रहे हैं, बहुत ही मिनिमम। यस। ठीक है, बहुत ही मिनिमम मतलब, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत जल्दी से बल हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर, मतलब जो मैं सोचता हूँ, अभी अभी अपने पास में ना जितना भी बीटीएच है सबके पास, वो एज ए बोनस आया है। अब बोनस क्या आया है सर, 1000 वाली आईडी आपको $700 में लग रही है, ये बोनस है, सिंपल। ठीक है, आपको रिटर्न और कितने में 200 मिल तो रही है? 200 एक और भी हजार पे। आ रही है ना। वो जो 200 आ रहा है, वो तो आपका इल कैश हो ही रहा है अभी 15 तारीख तक। लेकिन मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, आगे तक के लिए भी, आपकी 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 जो आईडी लग रही है, मान लीजिए आप पुराने यूजर भी नहीं, आप एक नए यूजर है। ठीक है, अब नए यूजर को क्या करना पड़ेगा, उसको पूरे $1000 खर्च करने पड़ेंगे, या 700 से ज्यादा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ $700 का, आपकी 700 में 1000 की लग रही है, आपको रिटर्न कितने में मिल रही है, 1000 पे। वर्किंग इनकम में कितने पे जा रही है, 1000 पे। तो इस बीटीएच का फायदा ये है। इस बीटीएच से अगर हम ये सोचे कि ये $0.50 सर, मैं मतलब ये नहीं कह सकता, ठीक है, कि नहीं होगा, क्या पता भाई साहब, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि ये $0.50 $1 भी हो जाए। ठीक है, पर मैं नहीं कहता ऐसा कि कभी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको ये चीज मिली है यार, जिस तरीके से भी हम इसको कैश करना चाहे हम कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास में, एलसी डब्ल्यूसी सबके ऑप्शन है। इसी तरीके से ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। आप इसको इनकैश करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तब भी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आया हुआ, आप इसको साइड में रखिए, जब आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा तब आप इसको कर लीजिएगा जो आपको करना हो। तो सर अभी ये बीटीएस का फायदा है, हम ये बीएसएफ में हाउ में बॉन्ड यूज कर खरीद सकते हैं, सकते हैं। जी 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 और जी। जब जब इसका प्राइस आप हो, हाँ सर, हम लोगों का एक प्लस पॉइंट है, हमने देखा जो बर्न हो रहा है वो काफी मात्रा में बर्न हो रहा है। तो अगर वो सप्लाई उसी ज्यादा भी हुआ, अगर इसी तरह बर्न होता जाएगा, तो हमारे एक टाइम आएगा बीटीएस हम बेस्ट प्राइस में सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक थोड़ा और एक क्वेश्चन है, बीटीएस का प्राइस जो भी है आज, कोई चाहे तो ये सेल कर सकता है कोई एक्सचेंजर में, या इसको कोई लॉक कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, लॉक का तो सिस्टम ही नहीं है, सदा ओपन रखा हुआ है। आप जाओ अपनी बोली लगाओ, सेल करो, लोगों ने किया है सर, बहुत सारे लोगों ने किया है। हमारी आपकी टीम के अंदर में दुनिया भर के लोग हैं जिन्होंने कर दिए, छोटे मोटे पे भी। सेल करने के लिए बायर भी चाहिए ना, बायर नहीं होगा तो सेल कैसे होगा। नहीं, वहां पे आप जब जाओगे, आप योबिट पे जाओ, आप वहां पे जो भी रेट है उससे कम रेट पे लगा दो, साला सबसे नीचे वाला रेट है, नहीं नहीं उससे सर, नीचे रेट पे। ये सेल नहीं हो रहा, सेल नहीं हो नहीं रहा नहीं है, वो नहीं नहीं, काफी देखो, लोगों ने ट्राई कल किया। ही कल ही एक बंदे ने $16 का बीटीएस सेल किया है। किस एक्सचेंजर में? इस पे, योबिट पे, $16 में उसने अपना वो ओके सर। खत्म कर दिया। वो क्या कह रहा मुझे ये नहीं, मैं जो है सर देखो मैं बता रहा हूँ, उसे उसे नहीं था, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे को ये है बस। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, वो तो आपकी अपनी कॉल है, मेरे को बता रहा था, कह रहा कि किसी के थ्रू पता चला कि $16 में किया हुआ है। ठीक है भाई, सबकी अपनी कॉल है।
इतना खो गया, हाँ। $16 से क्या होगा? वो को भी तो खो सर गया। हमारे जो जो बीटीएच आया था 0.80 के बाद 1 था, तभी हमको बीटीएच दिया था 1.5 रेशियो में। तो अभी कोई अगर बॉन्ड लेता है सपोज $10,000 के, तो उसको उसके वो जो हिसाब था उसमें ही उसका 30% कटेगा। ठीक है। हाँ हाँ, 0.6 टाइम्स 0 1 के रेट से 15 तारीख तक जिस रेट पे आपको मिला था, उसी रेट के हिसाब से वहां पे हाँ। आपको बीटीएच लगेगा। आपको नुकसान प्रॉफिट। नहीं होगा। ये नहीं कि आज बीटीएच इतना गिर गया है तो आपको मतलब आपका सारा ही उड़ गया। ऐसा नहीं। लेकिन कंपनी ने ये 15 तारीख तक लिमिट क्यों दी है भाई? सर जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनका बीटीएच भी उतना ज्यादा बर्न हो जाएगा। सर मेन फोकस बीटीएच इनकैश करना नहीं है, मेन फोकस है बीटीएच बर्न करना। जितना बट बंद बीटीएच करना। हम खत्म हो लोग जाए। को हम लोग को मेन फोकस तो बीटीएस कैश करना। आपका है ना सर, उनका लिए ना। आप बीटीएच कैश कब करोगे? तभी करोगे। आप बीटीएच कैश तो अपनी कम्युनिटी में भी कर सकते हो। आप आगे काम करना शुरू करोगे, आप उसमें भी कैश कर लोगे। कैसे लेकिन कम्युनिटी के अंदर सेल करूँ? किसके अंदर मैं बीटीएस दूँ? हर हर बंदा को पास बीटीएस का समुद्र है अभी। हम्म। सर बिलियन में है, बिलियन में, एक एक के पास सबके पास। बिलियन में है। जी 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 जी। आप और इसको सर ना देखो। अगर आप 15 तारीख में जो विड्रॉल है उसके बारे में कुछ बताना, और अक्टूबर और नवंबर में जो बूस्टर नहीं है उसके बारे में, सभी लोग टेंशन में है, उसके बारे में थोड़ा कुछ फाइनल बोल देना। सर एज पर जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, उसके हिसाब से जो भी आपका डब्ल्यू है, यानी क्या बोलते हैं उसको सर शॉर्ट में, डब्ल्यू वॉलेट ऑफ ठीक है। प्रोडक्ट। वॉलेट हाँ, वॉलेट क्रेडिट। वॉलेट क्रेडिट जो है, वो जिन्होंने अक्टूबर और नवंबर में बूस्टर्स परचेज किए हैं, उनका अभी 15 दिसंबर के बाद से इन कैश होना शुरू हो जाएगा। 10% पर मंथ। ठीक है। 10 बारी में खत्म। सर इधर इधर क्या उसके वॉलेट में जो है उसके हिसाब से 10%, या कंपनी के प्रॉफिट का नहीं नहीं नहीं, टोटल दस जो परसेंट उसके पास है, मान के चलिए आपके पास 5,000 रखे हैं, तो 500 आपको 10 बार में मिलके खत्म। ओके। ठीक है। और जो आपका एलसी है, वो अभी अगले महीने बूस्टर आ रहा है। बूस्टर में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, चाहो तो 30%। और नहीं करना चाहते हो तो उसके एक महीने बाद यानी फरवरी एंड या मार्च से वो भी आपका बायबैक होना शुरू हो जाएगा। उनके प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट का 10% उसमें रखेंगे और उससे बायबैक करना शुरू कर देंगे। ये दो चीजें हैं, सिंपल सोबर। सर आप लोगों ने जो कंपनी के साथ बात किया, एज लाइक तोपू भाई या प्रिंस भाई ने हमें बताया, जो हमारा एलसी है उसको थोड़ा कंपनी को बढ़ाने चाहिए, क्योंकि 30% बहुत कम हो जाता है। उसके बारे में कोई अपडेट है? सर एक बात बताऊं आपको, भाई वाली, ये जी ये जी। बातें ना, ये हम तब करें जब ये बूस्टर लेके आ जाएंगे सामने। देखो अभी, ओके। अच्छा আমি अभी এখন हम বলি। पता है, अभी हम कुछ भी बोल रहे सर, मुझे एक बात बताओ, अभी बहुत सारे लोग पता है मेरे को बोलते थे कि परवेश भाई ऐसे बात करनी चाहिए, परवेश भाई ये होना चाहिए था भाई, टोपू भाई ये करना चाहिए, प्रिंस भाई। हाँ, मैं आप इस कंपनी के मालिक, मैं आपसे भी तू करके बात नहीं कर सकता, तो मैं वहां जाके क्या करूँ आप बताओ। हम्म। अब मेन क्या है, सारी इंटेंशन आपके सामने है, आ गई है, चला रहे हैं, दे देंगे। इंटेंशन गायब होने की है 1% वाला ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही लोगों के पास है, नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे नहीं भाई इसको 2 महीने भाई देखो मैं फिर बोलता हूँ, मैं तो जो मेरे को समझ में आता है मैं तो खुद मैं 12 दिन वहां बैठा रहा, घर से जी। दूर। ठीक है। मुझे भी कोई शौक नहीं था, मैं बैठा रहा ढूंढता रहा, मिलता रहा, बात करता रहा, हम जी ऐसे प्रॉब्लम है, फलाना है, निकाला है, हमारे लोग ऐसे प्रॉब्लम है, हमारी करेंसी ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ के ये है, फलाना है। सर जो हो सकता था मैं तो उतनी बात ही कर पाया। लेकिन कुल मिला के जो मालिक है, वो भी अपनी जो प्लानिंग करके बैठा हुआ, वो उसी उसी तरीके से चलेगा। मैं क्या बोलूं। हाँ, जो जो बेस्ट हो सकता है वो आपके बीच में ले आया। आपसे अलग नहीं हूं सर, आपसे और मेरे में सिर्फ इतना फर्क है, मैं आपसे दो हूं, बस। जी। और इसीलिए जो मुझे दिखाई देता है वही मैं एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। भाई ये है, ये ऐसे आ रहा है।
ठीक है सर जी। थैंक तबु यू सो भाई, मच दोस्तों। तबु भाई আর কিছু? भाई अब 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 मुझे उधर उधर वाले पता है मैंने कितनी कॉल ভাই मार যা चुके हैं। বললো তো তপু আমরা ভাইকেও করি বুঝলাম, সওয়াল বাকিটা है। আমরা তপু ভাই, ইয়ে করে নেব। তপু ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কই গেল? বলেন। আমার এখানে নেটওয়ার্ক সমস্যা করতেছে। ওকে ওকে, আপনার আর কোনো প্রশ্ন? नहीं, फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर वही तरीके से हम लोगों को कम करना पड़ेगा। और में एक काम करते हैं, अगर आप लोगों को एतराज ना हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो शुरू में अभी कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार हम आपस में एक दूसरे के साथ एक जूम रखते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब मेरी बात अगर समझ आ जाती हो तो। अगर नहीं हाँ आती हाँ, हो तो फिर तो कोई 100%, बात। 100%, 100%। मतलब आप पूछ लीजिएगा सब भाइयों से, अगर समझ में अरे आती सब हो भाई रेडी। तो हर दूसरे दिन मतलब हम एक जूम रख सकते हैं आपस में। इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, वही करेंगे तो बहुत अच्छा होंगे। सभी लोग इसको बेहतर समझाएंगे। और जो टेक्निकल जो इशू है, शायद उसी उसी तरीके ही कम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन, अरे আমি তো হিন্দিতে বলতেছি। হ্যাঁ, আমরা এভাবে তবু করব। ভাই, আপনি কি ওই অফারটা বুঝতে পারছেন ভালো করে, যে অফারটার কথা বললো, যে 20% অফার, যেটা মানি আর কি অফার হিসেবে আসছে, যেটা অ্যাডামের থেকে বুঝে নিতে হবে, এই জিনিসটা আসলে আমরা ক্লিয়ার না। सर जी, वो जो 20% जो ऑफर है, हाँ, हाँ तो हाँ। वो हम कैसे जो प्राप्त डायरेक्ट करें? एडम को फोन करके मत करो, आपको उसके अंदर में क्या करना है, आपको उसमें डाउ वाला ट्रांजैक्शन आईडी और अपना बीटीएच का ट्रांजैक्शन आईडी, दोनों जब आप आईडी लगा दोगे, आईडी लगाने के बाद में जो दोनों ट्रांजैक्शन आईडी है वो दोनों आईडी आपको एडम को भेज देना है। जी। 7 दिन के अंदर में आपके पास में वो अपने आप आपके योबिट के एक्स पहुंच चुका होगा। हाँ, मतलब मैंने ओके। 1,000 का आईडी लगाया, उसके हिसाब से 20% मेरे को यूएसडीटी बैक हाँ, करेगा। 200। लेकिन आपको वो जो ट्रांजैक्शन आईडी आप भेजोगे ना, उसमें मतलब आपको आपके जो बिट हार्वेस्ट वाली जो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पे $200 का बीटीएच होना चाहिए। वो बीटीएच वो ले लेंगे आपसे, बदले में तब दे रहे हैं आपको यूएसडीटी। किधर होना चाहिए? फाइनेंस डॉट हाँ हाँ, वही बिटर। वही वही वहां पे बीटर वहां बिट पे। वाला आईडी में। हाँ वही वही जो अभी प्रिंस भाई ने बताया, BTH.finance. सर जो लोगों ने उठा लिया मोनो वॉलेट में लेके आया वो लोग। सर ट्रांसफर कर लो ना, ट्रांसफर तो हो जाता है ना, किसी की आईडी से किसी में भी ट्रांसफर हो जा रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, इसका कहने का मतलब मोनो वॉलेट से तो बीटीएस फाइनेंस में वापसी ट्रांसफर नहीं होएगा ना। अगर वहां से आपका नहीं हो, और नहीं वहां से नहीं होएगा तो कंपनी ने एक बीटीएच का एड्रेस भी दिया हुआ है, वो मैं आज सेंड कर दूंगा सबको। ठीक है, वो ऑलरेडी हाँ, ग्रुपों मैं में दे पड़ा दिया हुआ है, ऑलरेडी। प्रिंस भाई के पास भी होगा। तो आप वो हाँ। उस एड्रेस के ऊपर में उनको भेज दो वो बीटीएच। ओके। और एक चीज थोड़ा समझा देना, वो अभी ऑलरेडी बोला, मैं नोट नहीं किया। कोई बंदा $10,000 के एक पैकेज लिया, ठीक है ना? तो उसको $3,000 बीटीएस यूज कर दिया और $2,000 रिटर्न मिला, तो इन्वेस्ट रहेगा $5,000, राइट? पहली बार में 7,000 और 3,000 उसको करना पड़ेगा, हाँ। दो और बाद दो में और एक हफ्ता दो बाद। हजार डॉलर का बीटीएच उसको अपनी उस BTH.finance वाली आईडी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं हाँ। तो कंपनी के उस पे भेजना पड़ेगा, जब वो भेजेगा उसके 7 दिन के अंदर में उसको वो 2,000 वापिस आएगा। ओके, तो उसको इन्वेस्ट रहेगा $5,000, राइट? अभी। जी जी। ओके, हर दिन उसको मिलेगा $10, $100। $100। $100, $100 स्टेकिंग स्टेकिंग किया तो उसको हर दिन मिलेगा कितना? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट जो भी मतलब वो डिवाइड कर लोगे, 3 पॉइंट जो भी मिलेगा उतने का उसको बीएसएक्स मिलेगा। बीएसएक्स को तुरंत के तुरंत एक्सचेंज पे सेल करो, यूएसडीटी बनाओ, बस मतलब जो करना है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बीटीएस 50% यूज कर पा रहा जी है। जी जी जी, लेकिन सिर्फ 15 तारीख तक। भाई ये थोड़ा बढ़ा देना। भाई प्राइस रेट तो सर वही रहेगा, 0.60 के बाद 1, वो उस प्राइस में ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी। राइट राइट। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच दोस्तों।
आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ताकि मैं फिर दोबारा से आप लोगों के साथ में आ सकूं। ओके थैंक यू सो भाई मच। भाई भाई भाई, $100 स्टेकिंग किया तो हर दिन $3 कैसे आता है, कितना परसेंट इसके अंदर आता है? सर वो डिवाइड कर लो ना, डिवाइड बाय 30 को 3 पॉइंट समथिंग बनता है। 100 डिवाइड। वो तो पीओ भी आता है ना। BSX। वो पूरा उसको डिवाइड कर लो यार, पूरी मैथ मेरे से ही सीखोगे आप भी। हाँ सीखना होगा ना। ঠিক আছে ভাই, একবারে সৎ মাথায় নেই, আস্তে আস্তে আসি নতুন সবাই। अच्छा 100 स्टेइंग किया तो 105 मिलेगा ना, कितना मिलेगा 100? 115, 115 100। डिवाइड बाय 30। ओके ओके। ठीक है ना? ठीक है। ओके ओके बॉस, भाई। थैंक यू सो मच दोस्तों। 11.50 आज आज के लिए इजाजत, फिर मिलते हैं दोबारा बहुत ओके जल्दी। ओके ठीक है सर, भाई। ओके, थैंक यू। आप जाइए, मैं बात करता हूँ और तो भाई। ठीक है सर। तो थैंक मैं यू। इसको स्टॉप कर दूं भाई, यहाँ से स्टॉप शेयर कर दूं? हाँ स्टॉप शेयर करके आप लिख सकते हैं। मैं और तो ओके वो बात कीजिए ओके करते। सर, ओके 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 ओके। थैंक यू भाई, आपको इतना टाइम देने के। और अरे हफ्ता सर में थैंक यू। एक और दो दिन जूम। हम हफ्ते में कम से कम 3 रखते हैं सर। ओके ठीक है, तो हर बंदा को मालूम हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों अपना ध्यान रखना, ठीक है, ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं परसों। थैंक यू सर। ওকে, তবু ভাই বুঝছেন তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেজু ভাই। এখন যা বুঝছি ভাই, আপনি হুম। ওকে পার্সোনালি ফোন করে 15 তারিখেরটা কমাস কম 30 তারিখ পর্যন্ত যেন করে, তাহলে সবাই একটু কমফোর্টেবল ফিল করবে। কারণ ভাই 15 তারিখ অনেক শর্ট টাইম, ঠিক আছে, অনেকের সেটাই তো, মানুষ অনেক সব শর্ট টাইম, সব 15 তারিখ টাকা মানে আছে হচ্ছে আর এক এটার সপ্তাহ ভিতরে ঢুকানো আছে। হুম। ভাই মেন্টালি আগে প্রিপারেশন ইয়া নেওয়ার জন্য তো একটা টাইমের বন প্রয়োজন। নেওয়ার বিষয়টা আগে, তবু ভাই আমাদের যে বিষয়টা আগে ফলো আপ করতে হবে সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল বিষয়। প্রথমত আইডি, যারা ওই অন্য জিমেল দিয়ে করছে এইটা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে কেওয়াইসি যে সিস্টেম দেখাইছে, এই দুইটা জিনিস আগে আমাদের সলভ করতে হবে, তারপরে হচ্ছে বন নেওয়ার বিষয়। কেওয়াইসি করতে হবে না, কেওয়াই আপনার ওই অ্যাকাউন্টে ঢুকে আহ, প্রথমত আমরা বিপিএন ইউজ করে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন প্রত্যেকেই। আর দ্বিতীয়ত ওই যে কেওয়াইসি কেওয়াইসি না করে গুগল অথেন্টিকেটর আছে না, ওইটা অ্যাড করলে আপনি, তো ভাই কতজনই লিমিট? 60টা বিটিসি পার ডে, মানে 60 বিটিসি মানে ওই শুধু গুগল অথেন্টিকেটর সিকিউরিটি অ্যাড করলে আপনি প্রতিদিন মানে হিউজ আনলিমিটেড লেনদেন করতে পারবেন। এখন ওটা তো ভাই এগুলা ছাড়াও তো আপনার দেখছি আমি ওই ইউবিটে ডলার নিয়ে তারপরে এনে কোনো কিছু লাগে না, তো এগুলা করা কি আসলে জরুরি দরকার হবে সিকিউরিটির জন্য? ওটা ভাই সিকিউরিটির জন্য। আপনি যদি ভেরিফাই করতে চান, আপনি কাস্টমার সার্ভিসে যোগাযোগ করলে ওরা আপনাকে একটা অ্যাড্রেস দিবে, লিংক দিবে, ওই লিংকে ঢুকেও আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। রাইট রাইট, মানে ভেরিফাইটা একটু কঠিন, অত সহজ না। ঠিক আছে। আর এখানে তো ভাই আমি করছিলাম কি আপনার সৌদি আরবের নাম্বার দিয়ে, যেমন বাংলাদেশের নাম্বার নেয় না, সৌদি নাম্বার দিয়ে আপনার প্রথম যেই নাম্বার বাইন্ড অপশনটা আসে, এটা করার পর আপনার পরবর্তীতে আমি বাংলাদেশের এনআইডি কার্ড অনুযায়ী দিছি, ওইটা আবার ইয়ে হয়ে গেছে, কেওয়াইসি কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওকে। না এত ওটা হেডেক নিলে তো করাই যাবে এমনি। তাছাড়া নর্মালি করা ছাড়াই আমরা পরবর্তীতে চাইলেও করতে। এটা ওইটা করাই ভালো হবে, 60টা বিটি। হুম। অনেক। আচ্ছা, এটা একটু ওই যেটা আমরা এখন বুঝতে পারছি, এটা আমরা 50% আমাদের বিটিএস কিন্তু ইউজ করে ফেলতে পারতেছি একটু সিস্টেম যদি ফলো করি। দেখেন এখন যে পরিমাণে বিটিএস এর দাম, কয়টা এখন মনে হয় 9টা শূন্য না 10টা শূন্য, 9টা 10টা। এখন এইটাকে কিন্তু আমরা ওই যে আমাদের কোম্পানি, মানে আপনার মনে করেন $2,000 আপনার ডিভাইসের জন্য $3,000 বিটিএস, মানে না সরি 1.5 গুণ বিটিএস দিয়েছে, মানে 2400 $2,000 বিটিএস দিয়েছে। ওর মধ্যে আপনি কিন্তু এখন $1,200 ইউজই করে ফেলতে পারছেন, 50% ইউজ করে ফেলতে পারতেছেন হিসাবে। আপনার 30% অ্যাকাউন্ট করার সময় অটোমেটিক কেটে নেবে, আর 20% কোম্পানি আপনাকে রিফান্ড দিচ্ছে। তো 50% ইউজ হয়ে যাচ্ছে। তো
তো চাইলে করতে পারেন, কারণ এখানে ওই যে প্রবেশ তো যদি বুঝতে পারেন সিস্টেমটা জানতে, তাহলেই এখানে ইনক্লুডেড হন। তাছাড়া আপনি যে আছে এটা ক্যাশ করতে পারবেন, হয়তোবা সময় লাগবে, এখানে টাইমের বিষয়। এখানে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, এখন এইটাকে কিভাবে আমরা রিসলভ করব, এটা দিয়ে কিভাবে আমরা বের হব, এটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। তো এভাবে যদি আমরা ডাও এর মধ্যে ঢুকে আপনি 50% ইউজ করতে পারেন, আপনার এটা 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে আপনার সকল কিছু চলে আসতেছে। মানে আপনার 1.5 মাসের মধ্যে আপনি যেটা নতুন ইনভেস্ট করবেন, এটা 1-1.5 মাসে 60-70% চলে আসতেছে। তো 2 মাসের মধ্যে আপনি আপনার এখন যেটা বিট হারভেস্টের মধ্যে ডলার আছে এটাকেও একদম ফার্স্ট যাও শুরু হয়েছে 4-5 দিন হয়েছে। তো আমরা একদম ফার্স্ট অপশনে আছি। আমরা চাইলে আমাদের সকল কিছু এখান থেকে কিন্তু অনেক সহজে বের করতে বলেন রেজু ভাই। জি জি জি। তারপরেও দেখি এটা একটু আমি এখন একটু ক্যালকুলেশন করতেছি কোনভাবে করলে কতটা রিকভার হয়, ওইটা দেখে আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। জি, তবু আর কিছু। না, তাইলে এখন আমরা টেকনিক্যাল কার্যক্রমগুলো করি। এখন প্রায় মোর দেন কয় 9টা 10টা আচ্ছা। বেজে গেছে। আমরা আর আগামী মিটিং এ ইনশাল্লাহ আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্ব করব। তো মোটামুটি অনেক বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন আপনারা যারা প্রশ্ন করবেন ওই সেম প্রশ্নেই, কি হবে, কবে দিবে, কখন পাবো, এই এখন প্রশ্ন হবে এটাই, কি হবে। এরপরে বলবেন যে ভাই কেমনে করব। তো এগুলার জন্য আমরা এখন প্রচুর পরিমাণে কাজ করতে হবে। প্রথমত কিভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন, কিভাবে ডিপোজিট করবেন, কিভাবে উইথড্র করবেন, কিভাবে স্টেকিং করবেন, প্রচুর পরিমাণে ভিডিও বানাইতে হবে। মোর দেন না হইলেও এখানে ডিপোজিট থেকে উইথড্র পর্যন্ত এবং ওয়ালেট কানেক্ট পর্যন্ত একদম না হইলে 10টা ভিডিও বানাইতে হবে। তো এখন এগুলা না বানাইয়া আপনি প্রশ্ন করলে হ্যাঁ, ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু প্রশ্ন উত্তরই হবে, হ্যাঁ, কিন্তু ওগুলো এগুলা না করে। এগুলা এগুলা ইনশাল্লাহ স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও বানাই দিচ্ছি আপনাদের জন্য, কিন্তু যার করতে তাছাড়া কারো করার দরকার নাই, এতটুকু বলবো। কারণ বুঝে করাটা সব থেকে বেনিফিট। আর আমাদের কাছে এখন যেটা আছে সেটা যদি আমরা ক্যাশ করতে চাই, আমরা এই সিস্টেমে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ক্যাশ করতে পারি, এতটুকু বলতে পারি। জি তবু ভাই। জি, তাইলে আমরা আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ইনশাল্লাহ আরো 2 দিন পরে আমরা আরো একটা মিটিং করব। সেখানে শর্ট প্ল্যান হবে এবং এই 2 দিনের মধ্যে যারা যারা কার্যক্রম করবেন বা ওই করবেন ওই ভিডিওগুলো ফলো রাখেন, ইনশাল্লাহ সমস্ত বিষয়গুলো পাবেন। আর যারা এই মিটিংটাতে থাকতে পারে নাই, ইউটিউবে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। জি, তাইলে আমরা জি আজকে এটা এখানেই সমাপ্তি করি। ইনশাল্লাহ। জি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ, দেখা হবে পরবর্তী প্রোগ্রামে। জি।